All right, Assalamu alaikum and a very warm welcome at UXL ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर और मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है. Along with me is Tahir Ali, who will be the lead effective trainer for this training program. Let us start our orientation for dashboard reporting and analysis with Power BI training program being endorsed by IFA UK. Now let us go through the agenda of today's session. First of all, we'll be discussing about the business intelligence concepts. Then we'll be discussing about the importance of Power BI as a tool. Then we'll be discussing about the emerging career paths. What do the global things really say? Then we'll be discussing about the Power BI desktop program outline. Module wise, we'll be discussing the program outline of this Power BI desktop training program. Along with that, we will also be giving you an opportunity to ask any questions so that we make this session very interactive. Then we'll be discussing about a new feature that we have included into this program, which is called introducing Microsoft Fabric. Along with Microsoft Fabric, that is the latest 2024 update that we've added into the curriculum, we have now also included machine learning integration in Power BI. So we will be covering ML as well. More to be updated later on in the presentation. Then we'll be discussing about the schedule with program fee details. We'll be discussing about the UXL training platform and the facilitator's profile. So this session is fully jam-packed. There is a lot that has to be covered, and we are really thankful to you all for choosing UXL as your learning partner and coming over here as your coming over here to learn more about it, have an orientation about Power BI training program. Our objective of this orientation program is to make sure that we provide you adequate information so that it's easy for you to make a decision and join the Power BI training program. Now let us discuss about the business intelligence concepts. First of all, यहाँ पे हम स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि पहले जो है वो इन द अर्लियर एरा ऑफ बिजनेस एनालिसिस कैसे रिपोर्ट बनती थी, स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स बनती थी. उसमें हम पास्ट के बारे में डिस्कस करते थे कि भाई क्या हो चुका, व्हाट हैपेंड. then we started discussing about ad hoc reports कि भाई how many, how often, where. तो मिसाल के तौर पे अगर हमारी एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट है, लेट्स से P&L रिपोर्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट है. अब हमने जब उस प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में चीजों को देखा कि हाउ मच रेवेन्यू हैज बीन कलेक्टेड, हाउ much is the cost of sale, how much is the gross profit, expenses and net profit, net loss, all these चीजें स्टैंडर्ड रिपोर्ट मतलब क्या हो चुका, उसके ऊपर जो भी डेटा रिकॉर्ड हुआ है तो पास्ट को डिस्कस करें. अब हमें अगर लगा कि कोई ऐसा एक सेक्शन है जहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है या जहां पे बहुत ज्यादा एक्सपेंस हो गया है, लेट्स से हम उसी प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट में हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारा जो लेट्स से जो हमारे जो रेंट के कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, मतलब रेंट एक्सपेंस हैज गॉन रियली अप. सो वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग. हम उसमें से रेंट एक्सपेंसेस की एड हॉक रिपोर्ट जनरेट करते हैं और देखते हैं कि ये एक्चुअली क्या ऐसा रीजन रेंट एक्सपेंसेस हमारे बहुत ज्यादा हो गए और क्यों ये इतना ज्यादा बढ़ रहा है. तो फिर हमने यहाँ पे इसको जब एक्सप्लोर किया तो हमने फर्दर क्वेरी ड्रिल डाउन की और उसमें हमने एग्जैक्टली इशू को पॉइंट आउट किया कि ये रेंट का एक्सपेंस क्यों बढ़ रहा है. पता चला हमें कि एक्चुअली हमारा क्योंकि रिटेल का बिजनेस है और यहाँ पे हम डिफरेंट जगहों पे नए नए ब्रांचेस खोल रहे हैं, तो एज वी एक्सपैंड फर्दर एंड ओपन न्यू ब्रांचेस, तो ऑब्वियसली उन न्यू ब्रांचेस का जो रेंट है वो एक बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है एक्सपेंस. तो पिछले साल जो हमारा रेंट का एक्सपेंस था, जब हमारी लेट्स से हम जस्ट कोडिंग हमारी 100 ब्रांचेस थी, इस साल हमारा क्योंकि हमने 150 ब्रांचेस नई और खोली हैं, वी हैव गॉन एंड अ मैसिव एक्सपेंशन. तो हमारा जो वो उस एक्सपेंशन की वजह से जो रेंट एक्सपेंस है वो भी बढ़ गया है. तो वी कैन स्टार्ट सीइंग कि क्या ऐसा इशू है. तो हमें अब पता चलता जा रहा है कि क्या ऐसा पर्टिकुलर एरिया था एक्सपेंस का जिसमें हमें बहुत ज्यादा फर्दर
जो है वो एक्सप्लोर करने की जरूरत है और हमें देखने की जरूरत है कि हम कैसे अपने रेंट एक्सपेंस को मिनिमाइज कर सकते हैं. मे बी वी कैन नेगोशिएट with the landlords, or maybe we can go for any lease options, or we can start exploring कि क्या हो सकता है. बट वो तभी आएगा जब हमारे पास बिजनेस इंटेलिजेंस की बेसिस पर डेटा मौजूद है, उस डेटा से हम एनालाइज कर रहे हैं और उस एनालिसिस के बाद हम एक बिजनेस डिसीजन ले रहे हैं जो कि हमारे उस बिजनेस को डायरेक्टली बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है. अच्छा, अब जो है वो यहाँ पे हमने कुछ अलर्ट सेट कर लिए. देखें, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती जा रही है कि जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड रिपोर्ट से एडहॉक रिपोर्ट, क्वेरी ड्रिल डाउन, हम अलर्ट पे जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज इंप्रूव होता जा रहा है. अब ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की वो सारी हमारी ऑपरेशनल लेवल की हैं, लेकिन कोई भी बिजनेस है वो सिर्फ ऑपरेशनल लेवल पे नहीं चलता, बट जो है वो नेक्स्ट लेवल जो होती है जिसमें स्ट्रेटेजिक लेवल या टेक्निकल लेवल उसमें भी चल रहा होता है. तो हमें हमें अपनी बिजनेस इंटेलिजेंस के थ्रू ऑपरेशंस को भी फास्ट करना है, उसको स्मूथन करना है, बट हमें अपनी स्ट्रेटेजी को भी देखना है कि व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट 5 years. अब पास्ट का तो हमने डिस्कस कर लिया, बट व्हाट इज अबाउट टू कम, उसको जो है वो चेक करना है. तो वहां पे हम करते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, व्हाई इज दिस हैपनिंग, फोरकास्टिंग करते हैं, व्हाट इफ दीज ट्रेंड्स कंटिन्यू, हम इतना ज्यादा ओवर एक्सपेंड कर गए अगर, तो क्या हम उसको मैनेज कर पाएंगे या हमारे पास कैश फ्लो के इश्यूज आ सकते हैं. तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि जब हमारे पास डेटा है होता है तो उसी में से ही फिर हम कंटेम्पलेट करते हैं कि भाई बिजनेस की ये जो स्ट्रैटेजी है क्या ये वर्क कर रही है, बिजनेस की स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही. प्रोडक्टिव मॉडलिंग को अप्लाई करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन को करते हैं कि भाई डिफरेंट सिनेरियोस हैं कि अगर हम एक्सपेंशन कर रहे हैं तो क्या सिनेरियो है, अगर हम एक्सपेंशन नहीं कर रहे तो क्या सिनेरियो है, अगर हम नहीं करेंगे तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं और नहीं करेंगे तो उससे फायदे क्या हो सकते हैं. ये सारी चीजें जो है वो स्ट्रैटेजी लेवल पे डिस्कस हो रही होती हैं और वो तभी होती हैं जब हमारे पास बीआई, बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल्स और डेटा रिकॉर्डिंग का मैकेनिज्म स्ट्रांग हो. तो हाउ डज दिस बिजनेस इंटेलिजेंस रियली कॉन्सेप्ट दिस हेल्प द बिजनेस? Obviously, it helps in gaining the competitive advantage. जैसे जैसे हमारी सोफिस्टिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स इंप्रूव होती जा रही है, एरो की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज बढ़ता जा रहा है. अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जब बिजनेस इंटेलिजेंस की बात होती है तो व्हाई पावर बीआई एज अ टूल. तो हमारी ऑडियंस से मेरा एक क्विक क्वेश्चन है कि बिजनेस इंटेलिजेंस की जो हम डिफरेंट डैशबोर्ड्स बना रहे होते हैं या एनालिसिस जो कर रहे होते हैं, तो इसमें और कौन से टूल्स हैं जो कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं? एनीवन प्लीज. और टैबलो कौन से टैबलो टूल? टैबलो है, एक्सेल पिवट टेबल है. ओके, ग्रेट ग्रेट. और इसके अलावा जी नवीद, जी नवीद आप कुछ कहना चाहेंगे? ओके, बेसिक एक्सेल है, पाइथन है. हाँ, पाइथन का भी कह सकते हैं बिकॉज पाइथन में थोड़ी बहुत बिजनेस इंटेलिजेंस का होता है. आई थिंक एसक्यूएल तो नहीं होगा बिकॉज एसक्यूएल अल्टीमेटली वो स्टोरेज और वो एक कनेक्शन बिल्डअप कर लेता है, बट प्योर विजुअलाइजेशन पे अगर फोकस किया जाए तो आई थिंक उसमें जो है वो, जैसे कि आपने नाम बताया, टैबलो का बताया, आपने पाइथन का बताया, बेसिक एक्सेल में भी विजुअलाइजेशन एट सम पॉइंट ऑब्वियसली हो ही सकती है. फिर अब बहुत सारे ऐसे नए और भी टूल्स निकले जैसे क्लिक सेंस है, और इसके अलावा जो है ऑरेकल है, एसएपी के अपने भी बीआई के टूल्स हैं जो कि यूटिलाइज हो रहे हैं. तो ये सारे जब बीआई के टूल्स हैं तो फिर वाई पावर बीआई? क्वेश्चन तो ये आ जाता है कि हम पावर बीआई की तरफ क्यों जा रहे हैं. आइए जानते हैं कि क्यों पावर बीआई इज द मोस्ट पावरफुल टूल इन टर्म्स ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस डैशबोर्ड रिपोर्टिंग. सबसे पहले तो इसकी जो डेटा कनेक्टिविटी है वो बहुत ही जो है वो वाइड वैरायटी पे अवेलेबल है, इन अ सेंस कि वाइड वैरायटी. व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि आप वेबसाइट से डेटा ले सकते हैं, आप जो है वो ईआरपीस के थ्रू डेटा ले सकते हैं, आप जो है वो जो आपके पास एक्सेल में कुछ डेटा पड़ा हुआ है तो एक्सेल के थ्रू ले सकते हैं. सो आई मीन यू कैन ओनली इमेजिन इतना सारा पावर बीआई में डिफरेंट सोर्सेज से आप कंबाइन कर सकते हैं डेटा कि आप शायद थक जाएं, लेकिन पावर बीआई के पास पोटेंशियल बहुत सारा है कि मुख्तलिफ डेटा सोर्सेज से डेटा कनेक्ट करे पावर बीआई. फिर इसमें जो है वो पावर क्वेरी एडिटर का एक ऑप्शन आता है जिसमें हम
एक रॉ डेटा जो कि क्लीन्ड ना हो या जो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में ना हो, उसको हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस टेक्निक को हम इस ट्रेनिंग में सीखेंगे भी सही। फिर हम डेटा मॉडलिंग कर सकते हैं, रिलेशनशिप बना सकते हैं। डेक्स का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डेक्स? जी, बहुत सारे शायद ये सोच रहे होंगे कि सर यही तो सीखने हम आए हैं आज, आप यही सवाल पूछ रहे हैं हमसे। बहुत ही खामोशी हो चुकी है, इतनी खामोशी हो चुकी है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। जी, डेक्स का फुल फॉर्म क्या है? DAX, नॉट नोन। शर्जील ने तो कह दिया भाई हैंड्स अप, मुझे नहीं पता, दैट्स इट। और कौन है जो गैस करेगा? डेक्स का फुल फॉर्म डेटा एनालिसिस। Data analysis ओके, expression. वेल डन। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ शर्जील का जवाब और वसीम का जवाब, नहीं, वसीम और जावेद का जवाब। बिकॉज सैयद शर्जील नकवी ने बोला है डेटा एनालिसिस, और मोहम्मद जावेद ने बोला है एक्सप्रेशन। सो इट्स बेसिकली डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। सो वंडरफुल, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से आपको एक क्लैपिंग की इमोजी मिल चुकी, दैट्स ग्रेट। बाकी भी कम से कम क्लैप तो कर ही सकते हैं, क्या ख्याल है? क्लैप ही कर ले कम से कम, जवाब नहीं दिया तो। कोई क्लैपिंग नहीं करनी, कोई वर्चुअल क्लैपिंग नहीं करनी। ओके, एक आ गई है, बस सिर्फ एक ही आई है, दो आ गए, तीन ही कर दें कम से कम, एक और देख लूं मैं। चले चले, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, थैंक यू। ऑल राइट, सो दिस इज व्हाट रियली इट इज कि डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। अब ये डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस क्या है, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस आ जाती है पावर बीआई में, ये सब चीजें हम आगे चल के जब हमारा मॉड्यूल वाइज डिस्कस हो रहा होगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम जानेंगे कि नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी, अब ये क्या है, व्हाट इज दिस? आप क्या गैस कर रहे हैं कि ये नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी क्या होगी? व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी? एनी गेसेस? नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी। Thank you so much, Tahir Ali and Naveed and Hamza and Farzana for virtual clapping. Okay. And अब मेरा नेक्स्ट सवाल है, नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी क्या है? नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी, नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी। सर इतने सारे मुश्किल सवाल आप अगर पूछेंगे तो फिर कैसे होगा? यही तो सीखने हम आए हैं, ऐसा सोच रहे हैं? ओके, ऑल राइट, सो लेट मी ब्रेक द साइलेंस। नेचुरल लैंग्वेज, ओके, एक जवाब आ गया है। द वे टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर क्वेरीज लाइक क्वेश्चन, यस यू आर राइट, सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज, यस, कह सकते हैं आप सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज, बट लेट मी मेक इट इजी फॉर यू। सो आई एम प्रीटी श्योर कि आप सबने चैट जीपीटी तो अब यूज किया ही किया होगा, राइट? अब इतना कॉमन हो चुका है कि आप हर कोई चैट जीपीटी अपना, लेकिन इमेजिन करें कि जब आप सवाल कोई चैट जीपीटी से पूछते हैं तो चैट जीपीटी के पास पूरी दुनिया का डेटा है, राइट? चैट जीपीटी के पास, अस्सलाम वालेकुम, पूरी दुनिया का डेटा है। आप उससे सवाल पूछते हैं तो वो पूरी दुनिया का डेटा कंबाइन करता है, फिर उसमें से जो आप सवाल पूछते हैं उसका जवाब दे देता है। मतलब उसके पास जो पीछे डेटा है वो पूरी दुनिया का है, और आप जो सवाल पूछेंगे उस पूरी दुनिया का डेटा मुख्तलिफ जगहों से लेकर कस्टमाइज करके आपको जवाब दे देगा। अब आप इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन कि ये जो पूरी दुनिया का डेटा जो चैट जीपीटी आपको दे रहा है, अब वो चैट जीपीटी सिर्फ आपकी अपनी डेटा का हो। आपने अपनी डेटा डाली कंपनी की, आपने अपनी कंपनी की डेटा डाली और पावर बीआई में, और आपने कोई भी सवाल पूछ लिया कि व्हाट इज माय टॉप सेल्स, ऑटोमेटिकली पावर बीआई आपकी डेटा से ही जवाब दे, आपकी डेटा का जवाब दे। दिस इज कॉल्ड आस्क क्वेश्चंस इन नेचुरल लैंग्वेज। मतलब आप पावर बीआई में अपना डेटा डाल दें, उसके बाद आप उस डेटा से रिलेटेड, पहले क्या होता था, एक्सेल में डैशबोर्ड आप खुद बना रहे हैं क्लिक्स करके, या पिवट टेबल बना रहे हैं, मतलब आप काम कर रहे हैं। अब आपने डेटा डाल दिया पावर बीआई में, अब आपकी डेटा पे ही व्हाट आर माय बिगेस्ट परफॉर्मिंग यूनिट्स, तो वो बता रही योर बिगेस्ट परफॉर्मिंग यूनिट्स आर डिपार्टमेंट ए बी सी, according to the data that you have shared,
year-on-year growth is 10%, Q1 went well, Q2 was down. अब ये आपकी डेटा पे जवाब दे रही है आपको. So in a way, Power BI is making your life easier, because now it's not ChatGPT of the world data, it's your data, your questions, your answers. It is acting in your way of direction. Okay, can you please make a dashboard for me of top performing salespersons of the year? And it will make the dashboard for you, salespersons, based on your data. So this is something, obviously a skill. You need to learn this skill. कि कैसे, obviously it's not that easy कि आप चैट जीपीटी में आपने बस वो अकाउंट बनाया, डेटा डाल दिया और आप जो है वो चैट जीपीटी पावर भी आपको जवाब देना शुरू हो गया. ऑब्वियसली पीछे कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ टूल्स के वो एक कमांड्स हैं जो आपको अप्लाई करने होते हैं, तो फिर ही आप जो है वो उसको अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन बात ये है कि इमेजिन हाउ मच योर लाइफ इज इजी. तो हम जो सवाल का जवाब जो अभी डिस्कस कर रहे हैं कि सर पावर बीआई एज अ टूल क्यों सीखना चाहिए, हम तो टैब्लो भी सीख सकते हैं, हम तो ऑरेकल का बीआई भी सीख सकते हैं, हम तो एसएपी का बीआई भी सीख सकते हैं, हम तो सर किसी और चीज की जरूरत, हमारी तो छोटी सी दुनिया इतनी, हमारा काम तो एक्सेल में ही चल रहा है, हम तो एक्सेल में खुश हैं. तो व्हाई स्विच फ्रॉम एक्सेल, व्हाई स्विच फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग practice? Because these are the range of features that Power BI is offering you, and we are here to build up your skill in that and get efficient in terms of how to build up the dashboards. अच्छा, ये जो नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी का जो टूल है, इसका हम आगे चल के आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी देंगे कि हाउ दिस टूल इज रियली वर्किंग. अच्छा, उसके बाद हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि व्हाई पावर बीआई एज अ टूल. ऑब्वियसली आपको एक चीज का बहुत ज्यादा एक इशू बन चुका है, साइबर सिक्योरिटी. यू नीड टू मेक श्योर दैट योर डेटा इज सिक्योर, it is encrypted, it is not getting into the wrong hands. So obviously Power BI makes sure that your data is fully secure, it goes to the right people, it has got appropriate access, and obviously it has got a lot of encryption at the end जो आपको जो है वो उसमें हेल्प कर रही होती है. अगेन Power BI as a tool जब आप लेते हैं Power BI को, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको उस टूल के ऑटोमेटिकली मिलते हैं. अब यहां पे तो हमने डिस्कस किया कि पावर बीआई एज अ टूल क्यों इंपॉर्टेंट है, बट नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि सर ये पावर बीआई फंक्शन कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क, काम कैसे करता है. तो आइए उसके बारे में जानते हैं इन अ ब्रीफ snapshot. Obviously the details will be discussed later, but right now it's a high level summary. So Power BI as a function first of all connect करता है और ट्रांसफॉर्म करता है millions of rows. दैट मीन्स कि आज का जो दौर है वो है बिग डेटा का. आज का जो दौर है उसमें कम डेटा वाली जो है वो एक्सेल में, इमेजिन करें आप थोड़ा लोड डाल दें, एक्सेल हैंग हो जाती है. सो यू नीड टू रियली go to a tool which can tolerate or which has got the enough capacity to handle the data that you're working in. So obviously Power BI can work into millions of rows of data, and obviously it works from कि आपके पास डेटा वेबसाइट से आ रहा है, आपके पास डेटा जो है वो ERP से आ रहा है, आपके पास डेटा एक्सेल से आ रहा है, आपके पास डेटा जो है वो किसी और सर्वर से आ रहा है. सारी डेटा को आप कंबाइन करके एक जगह पे लेकर आते हैं और टूल स्लो ना हो, टूल की परफॉर्मेंस फास्ट है. तो वो सारी चीजें जो है वो ऑब्वियसली पहला स्टेप जो है वो एज अ फंक्शन क्या होता है कि आप कनेक्ट करते हैं, बिकॉज पावर बीआई इज नॉट अ स्टोरिंग पॉइंट. एक्सेल में क्या होता है कि आप डेटा स्टोर कर लेते हैं, पावर बीआई में आप स्टोर नहीं कर सकते. इट्स ओनली मिररिंग द डेटा एंड देन कन्वर्टिंग दैट डेटा दैट इज मिररिंग फ्रॉम द सोर्सेज इनटू डैशबोर्ड्स. तो वो जो कनेक्शन है, पहले आपको एक कनेक्शन बिल्डअप करना होता है फॉर मल्टीपल सोर्सेज. नंबर 2, नाउ दैट यू हैव कनेक्टेड द डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, नाउ यू स्टार्ट अप्लाइंग कैलकुलेशंस. और ये कैलकुलेशंस मतलब यू स्टार्ट एंजॉयिंग. इतना इजी हो जाता है, इतना इजी हो जाता है आपका काम कि आप यू डोंट गेट टायर्ड. If you are really passionate, अगर आप passionate नहीं है फिर तो obviously you'll get tired. But if you are passionate about something and
you want to utilize your time, so this is the tool where you can start optimizing upon whatever resources you have. तो इसमें क्या होता है कि डेक्स के कमांड्स हैं, उसको हम लर्न करते हैं. अब ये डेक्स के कमांड्स क्या हैं वो हम ऑब्वियसली आगे चल के हमारे पास चैप्टर प्रीव्यूज हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. बट राइट नाउ एज आई सेड इट्स अ हाई लेवल समरी फॉर यू कि ये फंक्शन कैसे करता है. ये सारी चीज जो इतनी मेहनत हो रही है, इतना मैं बोल रहा हूं, इतनी सारी मेहनत चल रही है, इतना सारा क्या है ये अल्टीमेटली क्यों कर रहे हैं हम? सारी मेहनत सिर्फ एक ही मकसद की वजह से चल रही है कि हमें विजुअलाइज करना है अपना डेटा. हमें डैशबोर्ड्स देखते हैं जो कि डायनेमिक हो, ऑटोमेटेड हो, हमारी डिसीजन मेकिंग स्नैपशॉट क्विकली हो सके. सारी मेहनत इसी चीज की हो रही है, राइट? हाउ टू मेक लाइफ इजियर ऑफ आवर मैनेजमेंट और ऑफ आवर क्लाइंट, कि क्लाइंट्स को जो डैशबोर्ड देने. तो हमने इन अ ब्रीफ नटशेल पहले कनेक्ट किया डेटा को, कनेक्ट करने के बाद उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद विजुअलाइज किया. दीज आर द हाई लेवल स्टेप्स ऑफ पावर बीआई वर्किंग एज अ फंक्शन, फंक्शनैलिटी जो उसकी चलती है. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट, वैसे तो बेनिफिट्स बहुत सारे पहले भी हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन कुछ ऐसे ब्रीफ जो है वो नटशेल में हम जो है वो स्नैपशॉट में हम जो है बेनिफिट्स को डिस्कस कर लेते हैं. तो मैम रिक्वेस्ट यू प्लीज रीड द फर्स्ट वन. हाँ अच्छा, आप पढ़ लेंगे प्लीज अगर. हाँ अच्छा वो हाँ लाइट्स ऑफ करते हैं आप. And the second one? Which one? This one. Personalized dashboards. Okay, so this is what really it is, the how Power BI is benefiting you and the organization. First of all, it is integrating smoothly with the existing. कि आपके पास जो भी सिस्टम चल रहा है उससे इंटीग्रेट हो जाएगा. So no worries on that. कि क्या सर मेरे सिस्टम से कंपैटिबल होगा या नहीं होगा? No, you don't need to panic at all. It will be compatible because it's got a lot of different sources through which you can combine the data. Obviously, फिर आप जब combine कर लेते हैं तो you can start making personalized dashboards. जो चीज मुझे जो पसंद है, why I like Power BI or why I want to use Power BI, the thing that really makes me a tick कि भाई इसको टिक कर दो. I don't need to have any specialist knowledge. Power BI जब बना, जब तख्लीक हुई Power BI, मतलब चीज जब बन रही है, लाइक जब मिसाल के तौर पे लैपटॉप जब बना तो लैपटॉप के पीछे पीसीस थे हमारे पास. पीसीस के बाद हम लैपटॉप से क्यों आए? लैपटॉप में ये था कि यू नो समथिंग वेरी कंपैटिबल, फ्लेक्सिबल एंड ट्रेवल इजी, पैक किया एंड देन यू कैन वॉक. तो उस वक्त जो डिजाइनर था, जो डिजाइन कर रहा था उस लैपटॉप जैसी मशीन को, वो उस वक्त क्या सोच रहा था? वो सोच रहा था मुझे कुछ कंपैटिबल चीज बनानी जो इजी टू. पावर बीआई जब बन रहा था तो उस वक्त जो बनाने वाले जो क्रिएटर्स थे उनके माइंड में ये था कि हमें इसको एंड यूजर ड्रिवन बनाना है ताकि कोई नॉन आईटी यूजर हो वो भी पावर बीआई कर ले डैशबोर्ड रिपोर्टिंग. So this is something I don't need to have any computer science degree. I don't need to have a proper IT background. Then only I know. Whether you are from HR background, whether you are from supply chain background, whether you are from finance background, whether you are from supply chain, call it any background. Ultimately, this tool makes your life easy as an end user because it expects कि end user को इतनी ज्यादा नहीं. हाँ, obviously basic कुछ जो स्किल्स हैं वो तो सीखने पड़ते हैं, कमांड्स कैसे लगानी है या आपको जो है वो फंक्शंस कैसे चलाने हैं. ऑब्वियसली दैट इज एक्सपेक्टेड, दैट इज गिवन, बट इट डजंट मेक योर लाइफ डिफिकल्ट. अब होता ये कि कहना नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इसके अलावा वाले जो सॉफ्टवेयर, जैसे मिसाल के तौर पे अब मैं नाम ले ही लेता हूं, जैसे मिसाल के तौर पे टैबलो है, तो उसमें सर्टेन आईटी लेवल की नॉलेज होना जो है ना वो फिर जरूरी हो जाती है, मतलब चाहते हुए ना चाहते हुए. ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि वो एंड यूजर ड्रिवन फ्रेंडली है, ऐसे नहीं कि टैबलो भी एंड यूजर फ्रेंडली है, बट पावर बीआई इज लाइक नेक्स्ट लेवल, इट्स नेक्स्ट लेवल ऑल टुगेदर. तो ये एक बहुत ही बड़ा बेहतरीन फीचर है जिसमें यू डोंट नीड टू हैव एंड यूजर, यू डोंट नीड टू हैव अ टेक्निकल नॉलेज कमांड्स, बट यस बेसिक लेवल की कुछ नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप उस डैशबोर्ड्स को बना सके. और ऑब्वियसली सिक्योर रिपोर्ट्स बनती हैं और सिंपल और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जो है वो रिपोर्ट्स बनती है. आप में से कितने हैं, रेज योर हैंड, जिन्होंने एक्सेल में डैशबोर्ड्स या वर्किंग की और उसके बाद उनकी एक्सेल हैंग होके बंद हो गई?
Anybody else? Nobody? आपका शायद इतना मैग्नीट्यूड ही नहीं हुआ शायद, आई डोंट नो। अच्छा, हमारी ऑनलाइन ऑडियंस में से कितने हैं ऐसे? ओके, सैयद शर्जील बोलते हैं यस। ओके, ऑलराइट, फरजाना का नहीं हुआ बट शर्जील का हुआ है। वेल, काउंट मी इनटू द कैटेगरी जिनके साथ ये बहुत हुआ है। And it is a nightmare when you're working for like 5-6 good hours and your report suddenly vanishes and you want to kill the computer. That's it. ठीक है ना? तो but gone are those days, obviously, because now Power BI is optimized solution, cloud-based solution. Obviously, it has got desktop version as well, but it does not have those performance issues जो कि Excel में हमारे पास आ रहे हैं। इसका मैं बिल्कुल आसान एग्जांपल देता हूं। आप इमेजिन करें, इट्स लाइक यू नो लाइक सर्टेन बर्ड्स who can eagle can travel only to certain sky level, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, बट जो कुछ चिड़िया है या कोई और छोटे छोटे बर्ड्स है, they can not fly as much as like eagle, right? तो एक उसकी जो ईगल की जो कैपेसिटी है टू फ्लाई इन द एयर, वो ऑटोमेटिकली उसकी जो कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो ये जो बाकी जो एक्सेल या ये कि they cannot reach to that capacity and they're not made for it as well, वो उसके लिए बने भी नहीं, राइट? वरना तो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट पावर बीआई है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट एक्सेल है, वो एक्सेल में इनहांस कर देती, और तो किया भी है, इसमें बीआई के भी एक्सेल में भी बीआई टूल्स आते हैं, बट क्यों जरूरत पड़ी उनको कि सेपरेट न्यू टूल होना चाहिए? दैट इज द रीजन, बिकॉज दिस इज होल न्यू गेम ऑल टुगेदर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू कि व्हाट इज पावर बीआई, है क्या पावर बीआई? आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से कितने यूजर हैं जो ऑलरेडी पावर बीआई को थोड़ा बहुत यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं, आप थोड़ा बहुत यूज करते हैं। ओके, हमारी ऑनलाइन ऑडियंस में से कितने ऐसे यूजर्स हैं जो कि पावर बीआई को थोड़ा बहुत यूज करते हैं? ओके, शर्जील नहीं यूज करते। वसीम बेग कह रहे हैं कि 15 मिनट लगते हैं रिफ्रेश करने में एक्सेल को। आई एम विद यू, मेरे साथ सब बहुत ज्यादा हुआ है। ओके, अच्छा, दानिश हबीब कहते हैं जस्ट स्टार्टिंग, पीनश कहती हैं बिल्कुल नहीं, राशिद कहते हैं नो। ओके, सो दैट इज रियली गुड, आई मीन that is really good. Why? Because now you've come here into this Power BI orientation program where we are giving you complete information as to why choose Power BI and what is Power BI. तो आइए जानते, एक शॉर्ट वीडियो हमने यहाँ पे ऐड की हुई है। ये वीडियो हमने वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट की ही ली है, और हमने आपकी जानकारी के लिए ये वीडियो ऐड की ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके, क्योंकि आप एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ पावर बीआई। तो जब तक आपका व्हाट क्लियर नहीं होगा तो आगे चलना मुश्किल है। तो लेट्स गेट टू नो कि व्हाट इज पावर बीआई। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट ऑफ पावर बीआई, पावर बीआई की वेबसाइट ये बोलती है कि इट्स अ बिजनेस इंटेलिजेंस प्रोडक्ट, एंड मेरे पास डेटा है, सो आई हैव द डेटा बट आई कैन नॉट विजुअलाइज इट, I cannot see it. I cannot take decisions on my data. So Power BI bridges that gap. कि डेटा है, डिसीजन लेना, डिसीजन लेने के लिए मुझे जो विजुअलाइजेशन के डैशबोर्ड्स चाहिए वो ये पावर बीआई फिल इन करता है उस गैप को, डेटा के ऊपर डैशबोर्ड्स बनाता है, डैशबोर्ड्स के ऊपर आप डिसीजन मेकिंग ले रहे हो। Obviously it includes desktop and web-based applications. Now let us go through a video which is a short video, a case study video, जिसमें हम जो है वो जानेंगे कि क्या है पावर बीआई एंड हाउ इट मेक्स योर लाइफ इजियर। This is Donna, CEO of a popular rideshare company. ऑनलाइन ऑडियंस प्लीज के आवाज आ रही है इस वीडियो की? इज द वॉइस ऑडिबल ऑफ दिस वीडियो? ओके, ग्रेट, थैंक यू। सो आई विल स्टार्ट द वीडियो अगेन। This is Donna, CEO of a popular rideshare company. Her team is exploring bringing a new idea to market, Tailspin, a service that would drive people's pets to and from veterinary appointments. This is Malia, Donna's business intelligence manager. To understand the viability of their new venture, Malia will need to analyze data, a lot of it, and share it with Donna and her leadership team. Literally trillions of rows and rows about customers' recent trips to vet offices and which existing riders live more than half a mile from their veterinarian. She'll need to analyze a petabyte of data. Using Power BI, without needing to learn any new skills, Malia is able to use the data stored in Azure Synapse Analytics, where the trillions of data points are stored, and access raw, historical data about every trip.
To help the analysis, Malia also needs to mash up the company's data with a public data source for pet ownership data. She seamlessly integrates it alongside her existing rideshare data, all in Power BI. Using big data capabilities in Power BI, Malia can connect to massive amounts of data, combine it with other sources, prep data with ease, and transform and organize massive amounts of data with Power Query at a fraction of the cost, time, and expertise previously required. She sets up a model to determine the average number of pets per household in any given postal code, and then easily transforms Power BI data into an interactive visualization and creates a beautiful report to share with Donna. Analyzing data from both the data warehouse and the external sources, Donna uncovers the insights needed to make the decision to proceed with Tailspin. Donna and her team are excited about the revenue potential of this service and get started on a launch plan right away. Quickly go from data to insight to action. Any data, any way, anywhere. Business intelligence like never before. All right, so what were the key takeaways from this video? Maybe if you can just share some thoughts. Key takeaways. Key takeaways. Yeah. ये इसमें ये है कि आपको इतना ज़्यादा एक तो टाइम इतना ज़्यादा मिलेगा कि आपको जो डेटा एक कलेक्शन पूरी करनी होती थी कि आप इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो फिर उसको कलेक्ट करके एक तरह से वो मिनट्स या उसके सेकंड्स में होते हैं. Excellent, excellent. That is one of the key takeaways. Anyone else from the online audience who would like to share the key takeaway from this video? Okay, Syed Sharjeel has come up with this big data to dashboards for decision makers, real-time visual data, and that's only one click. Excellent. That's it. Yeah, that's it. Yeah. So that is what really the thing is. कि imagine yourself doing all this analysis in few clicks. I won't say one click, but at least few clicks, right? Okay. So now let us move on to what are the emerging career paths of this Power BI training program. कि जब आप Power BI कर लेते हैं तो क्या-क्या career paths हैं जो आप adopt कर सकते हैं. Obviously, जैसा कि ये डेटा बोल रहा है कि companies are adopting technology by 2027, तो which means कि जो भी टेक्नोलॉजी है वो ऑल्टर हो रही है और यहाँ पे जो भी स्किल्स हैं वो आपको जो लेने हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन स्किल्स के साथ अपने आप को अपडेट करें बिकॉज आप अगर अपडेट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली कंपनीज आगे बढ़ रही हैं दे आर डूइंग न्यू हायर्स एंड यू विल बी फेडेड अवे. इट्स जस्ट लाइक मी ऑफरिंग अ ट्रेनिंग ऑफ अ टाइपराइटर. कैन इट वर्क? Right? Power BI will work for you. Typewriter won't. You won't be here. So why would the company be for you? Won't. It would move on, right? So you need to also build up the capabilities and be relevant to the market. अच्छा, यहाँ पे ये है कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन जो हमारे पास हो रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड एप्स, एजुकेशन एंड वर्कफोर्स, बिग डेटा एनालिटिक्स. So this is like going to 80%. क्या है ये डेटा कि कितनी कंपनीज हैं जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही हैं. Technologies ranked by the share of organizations surveyed who are likely or highly likely to adopt a technology. तो 80% organizations जो है वो big data analytics को adopt कर रही हैं. So you need to be where the momentum is going. Again, ये सारी डेटा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है. I would encourage you to go to the source. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट फ्यूचर ऑफ जॉब्स फॉर 2023. ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपको पूरे डायनामिक्स ऑफ द वर्ल्ड बताती है कि क्या-क्या स्किल्स की जरूरत पड़ने वाली है. अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द पावर बीआई मॉड्यूल्स इन अ स्नैपशॉट कि इस ट्रेनिंग में कौन से मॉड्यूल्स हैं जो कवर होंगे और इसमें हम एक नया फीचर भी लेकर आ गए हैं. ऑब्वियसली हम इस ट्रेनिंग को कॉन्स्टेंटली अपडेट कर रहे होते हैं. तो सबसे पहले तो हम जो है वो लेवल 1 में हम पिवट टेबल्स को कवर कर रहे होंगे, कैसे डेटा उसमें एनालाइज किया जाए, क्या पावर क्वेरी पावर पिवट को कर रहे होंगे. फिर यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन टू पावर बीआई पे आ जाएंगे. एक्सेल से डायरेक्टली ट्रांजिशन करेंगे टुवर्ड्स पावर बिकॉज़ बहुत सारे यूजर्स ऑलरेडी एक्सेल से फैमिलियराइज होते हैं. तो एक्सेल से फिर क्विकली वी विल बी ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स पावर बीआई. We could have started directly from Power BI, we could have, but I think it's more easier as a transition. और उसके बाद एडवांस पावर क्वेरी और एडवांस डेटा मॉडलिंग है उसको कवर करेंगे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन पावर बीआई उसको कवर करेंगे. एसक्यूएल को कवर करेंगे कि हाउ कैन यू इंटीग्रेट एसक्यूएल विद पावर बीआई. पाइथन इंटीग्रेशन करेंगे. लेकिन जो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग पार्ट है, द थिंग दैट आई एम रियली एक्साइटिंग अबाउट दिस बैच, मतलब हमारा ये आई थिंक 40th बैच है मेरे ख्याल से, 41 है.
40th बैच है। 39 बैचेस में जो नहीं हुआ वो इस बैच में होने वाला है, which is the machine learning part. We are adding machine learning into Power BI as well. तो वो machine ML का connection in Power BI क्या है? How does Power BI start learning your data and how can you make it learn so that it answers to your queries? तो वो ML को कवर करेंगे डिटेल में, which is obviously something new and exciting. और जब कुछ नई चीज तो एक्साइटिंग हो तो मैं खुद बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता हूं, एंड दैट इज समथिंग दैट वी हैव एडेड इन। इसके साथ साथ वक्त बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं। अब जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई जो है वो पहले पावर बीआई एज अ प्रोडक्ट चलता था, अब जो है वो पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक का एक कंपोनेंट बन गया है। डू यू नो अबाउट दिस चेंज और नॉट? So this has recently come. It's just like imagine कि MS Excel खुद ही चल रही है अपने तरीके से, लेकिन सडनली माइक्रोसॉफ्ट का एक पॉइंट आया जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि अब हम MS ऑफिस सूट निकाल रहे हैं। MS ऑफिस सूट, उसमें एक्सेल एक कंपोनेंट होगी, वर्ड एक कंपोनेंट होगी, पावर पॉइंट एक कंपोनेंट होगी और आउटलुक एक कंपोनेंट होगा, और इन चारों को मिला के MS ऑफिस सूट बनेगा। तो एक्सेल इमेजिन करे बगैर ऑफिस सूट के चल रही थी, और अब माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया MS ऑफिस सूट को और उसमें एक्सेल ऐड कर दिया। पावर बीआई भी ऐसे ही चल रही थी अपने तरीके से इंडिपेंडेंटली, लेकिन अब रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है कंप्लीट डेटा एनालिटिक्स का एंड टू एंड प्लेटफॉर्म विच इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक। माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के अंदर पावर बीआई भी ऐड किया। So Power BI is an independent tool itself, like Excel is an independent tool, but it comes under the umbrella of MS Office Suite. So Power BI is also an independent application, but it comes under the umbrella of Microsoft Fabric. So what is Microsoft Fabric? What is end-to-end data analytics? What is data warehouse? मतलब अब डेटा वेयरहाउस की बात चल रही है। जैसे हमारा इन्वेंट्री वेयरहाउस में स्टोर होता है, फार्मेसीज का, लैपटॉप्स का, डेटा का भी वेयरहाउस बन रहा है कि डेटा वेयरहाउसेस। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें फिर हमारे पास वन लेक का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो पूरी दुनिया का होगा या कुछ कंपनीज का होगा? नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ने ये सॉल्यूशन निकाली है माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, उसके अंदर पावर बीआई को ऐड किया, और ऑब्वियसली पूरी दुनिया को अब अडॉप्ट करना होगा उसको, क्योंकि अब माइक्रोसॉफ्ट ने पावर बीआई का कंपनीज का डेटा ज्यादातर फैब्रिक के थ्रू जनरेट हो रहा होगा। जी बिल्कुल। तो उसको हमने जो है ना यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है कि इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, वर्कस्पेसेस एंड लेक हाउसेस कैसे बनते हैं, हाउ टू क्रिएट अ फ्लोज इन द डेटा, एंड हाउ टू ऑटो क्रिएट अ रिपोर्ट इन पावर बीआई। सो द थिंग इज दैट हम जो है वो पावर बीआई को कवर कर रहे हैं, लेकिन हम ओवरऑल दुनिया की जो डायनामिक्स हैं कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट बिहेव कर रहा है या चेंजेस को लेकर उसको भी लर्न करें, बिकॉज वो हमारे लिए जानना जरूरी है। जब हम एक फील्ड में हैं तो हमें फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। दैट इज व्हाई वी एडेड दिस इनटू दिस, बिकॉज अब 1 या 2 साल के बाद आपके पास रिक्वायरमेंट आना शुरू हो जाएगी माइक्रो फैब्रिक कि यू नीड टू नो माइक्रो फैब्रिक। हाँ, तो यू विल बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस फॉर दैट। ऑब्वियसली वी विल बी कवरिंग दिस एट एन इंट्रोडक्शन लेवल। आवर मेन फोकस वुड बी पावर बीआई। दिस विल बी ओनली coming through as an introduction, ताकि एटलीस्ट आप बात करने जैसे हो, because if you are in this field. माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक में आप और क्या सॉफ्टवेयर होंगे उसके अंदर? जैसे आपने बताया कि सूट के अंदर तो पावर पॉइंट, एक्सेल, सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक में कौन-कौन से होते हैं? सिर्फ पावर भी अवेलेबल है या एज़्योर है, क्या-क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। ये हम आगे चल के जो ये मॉड्यूल्स डिस्कस करेंगे उसमें ये हम शेयर करेंगे आपसे कि क्या-क्या इसमें मॉड्यूल्स इन्वॉल्व हैं पावर फैब्रिक के नीचे क्या-क्या मॉड्यूल्स हैं। अच्छा, नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द लर्निंग आउटकम्स कि ये जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो क्या-क्या आउटकम्स मिलेंगे। सबसे पहले तो यू विल बी एबल टू कनेक्ट डेटा, you will learn how to connect the data from multiple sources and build up Power BI dashboards. Then you will be able to apply artificial intelligence features. AI features क्या हैं, जिसमें मैंने आपको नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी का बताया था कि आपकी अपनी डेटा उसके ऊपर ही आप सवाल पूछ रहे हैं, पावर बीआई से सवाल के जवाब दे रहा है, वो AI फीचर्स है। एडवांस क्वेरीज कैसे आप मल्टीपल डेटा को कनेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली डेटा फ्लोज कैसे बनाएंगे, इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो कि पाइथन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, पाइथन का रोल क्या है पावर बीआई में। अगेन हमारा मेन फोकस पावर बीआई रहेगा, लेकिन ये पाइथन, एसक्यूएल, फैब्रिक, ये दीज आर द बिट्स एंड पीसेस दैट कम इनटू प्ले, तो उनको जानना बड़ा जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम फर्दर डिस्कस करते हैं अब हमारी आउटलाइन को एग्जैक्ट डिटेल में। I would now request Tahir Ali to continue the session and provide you a complete orientation about module wise of this whole training program. So with a huge round of applause, come on. कोई दम नहीं है।
Okay, over to you, Tahli, to lead the session further and provide complete detail about this training program module wise. Thank you. थैंक यू फरहान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ओवरव्यू तो आपने देख लिया, ब्रीफ हम मॉड्यूल वाइज ब्रीफ मजीद डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो यानी पावर बीआई अगर आप सीखना चाहते हैं तो जो ओनली प्रीरेक्विजिट है फॉर लर्निंग बीआई वो है आपका पिवट टेबल। और वो भी जब आप, चूंकि बीआई जो है बीआई टूल्स हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट में 2 फ्लेवर्स के अंदर अवेलेबल है आपके पास। एक है आपका बीआई फॉर एक्सेल, जो एक्सेल के एड ऑन के तौर पे एक्सेल के अंदर अवेलेबल होता है, और दूसरा जो सेट है वो है आपका पावर बीआई डेस्कटॉप और पावर बीआई सर्विस, ठीक है ना। तो ये दोनों हम कवर करते हैं। तो स्टार्ट हम करते हैं बीआई फॉर एक्सेल से, और उसमें भी जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल होता है या फर्स्ट हमारा सेशन जो होता है वो हम नॉर्मल जो पिवट टेबल एक्सेल के अंदर, तो अगर किसी को आता है तो उसके लिए रिफ्रेशर हो जाता है, किसी को नहीं आता तो वो उसके लिए यानी उसके लिए वो फाउंडेशन बन जाता है फॉर फर्दर लर्निंग। क्योंकि जब आप हम पावर पिवट की बात करते हैं तो पावर पिवट का जो आउटपुट है वो पिवट की ही शक्ल में होता है। हाँ, बैकएंड के ऊपर उसमें बहुत सारी पावर ऐड हो जाती है, फिर डेक्स की भी बात करी, पावर क्वेरी आ जाती है उसके अंदर, लेकिन फ्रंट एंड के ऊपर जब आप रिपोर्ट बना रहे होते हैं तो वो पिवट ही की शक्ल में होती है, जो नॉर्मल पिवट होता है। तो अगर वो किसी को नहीं आता तो फिर उसके लिए मुश्किल हो सकता है। हमारा पहला सेशन जो है वो होता है पिवट टेबल्स के ऊपर नॉर्मल, और इसमें हम कोशिश करते हैं एक छोटा सा एक डैशबोर्ड बना हुआ है जो सिर्फ नॉर्मल पिवट टेबल यूज करते हुए हमने एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाया है। हम कोशिश करते हैं कि जो है एक तरह का इसमें जो है वो बाय द एंड ऑफ द सेशन आप जो है वो एक डैशबोर्ड बना सकें इस तरह का। बेसिक डैशबोर्ड इंटरेक्टिव डैशबोर्ड है, और नॉर्मल पिवट टेबल को यूज करते हुए वो हमने बनाया था इसके अंदर। तो पहला सेशन हमारा ये होता है। फिर नेक्स्ट सेशन से हम आ जाते हैं अपने पावर पिवट के ऊपर। उसमें जो पावर पिवट का जो फंडामेंटल्स हैं, हमारे जो बेसिक्स हैं, ये ले जाए। तो जो हमारा सेकंड सेशन होता है उससे फिर हम जो है वो बीआई स्टार्ट करते हैं। तो बीआई के जो बेसिक्स हैं, वेरी बेसिक्स फंडामेंटल्स के जी, आप किस तरीके से मॉडल क्या चीज होती है, रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होते हैं, उसमें डिमेंशंस और फैक्ट टेबल्स क्या होते हैं, ये सारी डिटेल जो बिल्कुल बेसिक्स हैं इसकी। तो मॉडल आप किस तरीके से क्रिएट करते हैं पावर बीआई के अंदर, पावर बीआई की विंडो कैसी होती है, डेटा आप किस तरह डिफरेंट सोर्सेज से इंपोर्ट कर सकते हैं, लाइक CSV के अंदर डेटा है, एक्सेल के अंदर है, PDF के अंदर है आपके पास डेटा, वेब के ऊपर है डेटा। तो मल्टीपल सोर्सेज से साइमल्टेनियसली आप किस तरीके से डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, उनको कंबाइन कर सकते हैं और फिर उसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा एक जैसे कहते हैं ना फ्लो है एक पूरा के, और इसके उसके अंदर आप एक टर्म यूज करते हैं और वो क्या कहलाती है आपकी ETL, बहुत पॉपुलर टर्म है ETL मीन्स जी। तो ETL stands for extract, transform and load. E for extract, T for transform, L for load. ये प्रोसेस है क्या कि आप पहले सोर्स से, जो हमने जिक्र किया अभी के लिए, डिफरेंट सोर्सेज से आप साइमल्टेनियसली डेटा पुल कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं आप उसको, देन उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब कि अगर वो उस शक्ल में नहीं है जिस शक्ल में हमें रिपोर्ट बनाने के लिए रिक्वायर्ड है, तो हम उसको पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे, और इसके लिए टूल अलग से मौजूद है। बीआई टूल जो है वो एक सेट ऑफ टूल्स है, जिनमें से एक जो है टूल इसका वो कहलाता है आपका पावर क्वेरी, जहां पर हम ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करते हैं। डेटा को ट्रांसफॉर्म, जो ये ट्रांसफॉर्म वाला स्टेप है, ये हम कहाँ करते हैं, पावर क्वेरी के अंदर करते हैं, ठीक है। और जब ट्रांसफॉर्म यानी जब ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है, देन वी लोड इट टू पावर बीआई, ठीक है। तो ये प्रोसेस इस तरह से चलता है कि पहले आपने एक्सट्रैक्ट किया डिफरेंट सोर्सेज से डेटा, पावर क्वेरी के अंदर लेकर आए, ट्रांसफॉर्म किया, उसको क्लीन किया, ट्रांसफॉर्मेशन में सारी चीजें आ जाती हैं, कंबाइन करना भी आ जाता है, क्लीन करना भी आ जाता है, बहुत सारी चीजें। तो वो करके एंड देन फाइनली जो क्लीन डेटा है वो हम फिर लोड करते हैं पावर बीआई, और वहां फिर हम एनालाइज करते हैं उसको। वहां एनालिसिस करने के लिए वहां पर अलग लैंग्वेज है, जो किसी करके फरहान साहब ने भी कि DAX जो पावर बीआई की लैंग्वेज है, उसको यूज करते हुए फॉर्मूलाज बनाते हैं, एनालिसिस करते हैं, और फाइनली फिर हम डैशबोर्ड्स बनाते हैं। तो ये हम जो है वो यहाँ पे करेंगे। और ये जैसे एक डैशबोर्ड है, ये है तो नॉर्मल आपको दिखने में पहले वैसे जैसा ही लग रहा होगा, लेकिन ये पावर पिवट से बना हुआ है, ठीक है। इसमें जो कुछ एनालिसिस आपको दिख रहे हैं वो नॉर्मल पिवट के अंदर आप इतना आराम से नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल करंट वर्सेस लास्ट ईयर आप नॉर्मल पिवट के अंदर इतना आराम से नहीं बना सकते, बट यहाँ पर आप फॉर्मूला लिख के बना सकते हो। ये बहुत छोटी बेसिक्स एग्जांपल आपको बता रहा हूँ।
या एक पर्टिकुलर सेल्स रैप का ही पूरा डैशबोर्ड आप बना लें फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये इस तरह की चीजें। तो राइट अवे, राइट फ्रॉम द सेकंड सेशन हम डेक्स मॉडल बनाते हैं अपना, और वहां से डेक्स लिख के हम जो है वो यानी हमारी फर्स्ट अजम्पशन ये होती है कि हमारा डेटा क्लीन है। पहली अजम्पशन हम ये लेते हुए कि हमारा डेटा क्लीन है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है, और हम जस्ट राइट अवे हम उसको एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। डेटा लाए, डिफरेंट सोर्सेज से कंबाइन किया, मॉडल बनाया, लोड किया, और लोड करने के बाद हम उसको एनालाइज कर रहे हैं कि जी हम उसमें से यूनिट सोल्ड, मिसाल के तौर पर अगर सेल्स का डेटा, हम यूजुअली सेल्स का डेटा क्योंकि रिलेटेबल होता है, अक्सर लोग, सारी लोग तकरीबन रिलेट कर सकते हैं सेल्स के डेटा से, तो हम सेल्स के डेटा से स्टार्ट करते हैं। तो उसमें कि जी डिफरेंट ऐप में कितने यूनिट्स बिके हैं, कितनी सेल्स हुई है, कितनी कॉस्ट कितनी आई है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, एंड सो ऑन। बहुत सारी कैलकुलेशन है, वो हम फॉर्मूलाज लिखते हैं और फिर उसको डिस्प्ले कराते हैं रिपोर्ट्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो सेकंड सेशन होता है, और ये हमारे ये वाला काम जो है वो हम तकरीबन 2 सेशंस के अंदर करते हैं। सेकंड और थर्ड सेशन के अंदर हमारा ये कि किस तरह से मॉडल बिल्ड करना है, फिर उसके ऊपर एनालिसिस कैसे करना है, डिफरेंट फॉर्मूलाज कैसे लगाने, ये सारी चीजें जो है वो हम 2 सेशंस के अंदर फर्दर हमारे कंप्लीट, यानी 3 सेशंस कंप्लीट हो जाते हैं। देन हमारे पास जो है जो हमारा थर्ड सेशन है, उसके अंदर फिर हम जो है वो पावर क्वेरी, यानी एक डेडिकेटेड सेशन होता है फॉर पावर क्वेरी कि आप डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग पावर क्वेरी विदाउट राइटिंग एनी कोड कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके पास डेटा ऑलरेडी मौजूद है, अब डेटा अपडेट हो रहा है, तो वो डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर आपके पास आ रहा है, तो उसको आप किस तरीके से उस डेटा के साथ कंबाइन कर सकते हैं जो एग्जिस्ट कर रहा है ऑलरेडी आपके साथ, उस टेबल को कैसे आप अपडेट कर सकते हैं यूजिंग पावर क्वेरी विदाउट राइटिंग एनी कोड। विदाउट राइटिंग क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि पावर क्वेरी की भी अपनी लैंग्वेज है। जैसे डेक्स जो है वो पावर पिवट की लैंग्वेज है, ऐसी पावर क्वेरी की भी अपनी लैंग्वेज है जो क्या कहलाती है, अपनी एम लैंग्वेज कहलाती है। तो आपको कॉम्प्लेक्स क्वेरीज जब रिक्वायर्ड होती हैं तो आप एम लैंग्वेज के अंदर, जो हम इस कोर्स के अंदर आगे जाकर एडवांस पावर क्वेरी के अंदर हम देखते हैं कि आप एम लैंग्वेज में किस तरह से कोडिंग करके डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो वो आगे चल के आता है। बट इस स्टेज के ऊपर जो हमारा फोर्थ सेशन होता है, इसके अंदर हम जो है वो बगैर कोई कोड लिखे हुए, जस्ट क्लिक्स करते हुए हम डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हम देखते हैं, और यहाँ पर आके फिर हमारा जो BI फॉर एक्सेल वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और मजे की बात ये है कि यहाँ तक हमने जो कुछ सीखा होता है, ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे आके खत्म हो जाता है, अब फिर अगले सेशन में हम कोई नई चीज सीखते हैं बिल्कुल से, बल्कि यहाँ तक जो कुछ नॉलेज आपने गेन की है वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, लिटरली कैरी फॉरवर्ड हो जाती है आपके पावर BI डेस्कटॉप के अंदर। यानी जो फाइल आपने बना के रखी हुई है, ऐसा आपने मॉडल बनाया हुआ है, डेक्स लिखा हुआ है, क्वेरी लगाई हुई है उसके ऊपर, वो पूरी पूरी एक्सेल की फाइल जो है वो पावर BI डेस्कटॉप के ऊपर एज इट इज अपलोड नहीं जाती, कन्वर्ट हो जाती है। यानी अब आपको नए सिरे से कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ बनाया था वो डेस्कटॉप के अंदर आ गया, ठीक है। तो डेस्कटॉप क्या है, एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से BI की, और उसके अंदर जो है वो आप यानी जैसे मैंने कहा कि दूसरा फ्लेवर है वो जो आपको अवेलेबल है BI का, जो पावर BI, और जेन्युइनली मजे की बात यह है कि ये जेन्युइनली फ्री है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जेन्युइनली फ्री है, अभी तक फ्री है, 100% फ्री है। आप जितनी हर महीने इसकी अपडेट आती है, आप हर महीने उसको डाउनलोड कर लें, अपडेट कर लें अपने पास, और फ्री है जनरली। तो डेस्कटॉप पे आप जो है वो ये जैसे आप कर लोगे, तो ये जब आप इस पर ट्रांजिशन करते हैं तो यहाँ पर बस एक चैलेंज जो शुरू में आता है वो क्या आता है कि जी जो अगर आप एक्सेल के यूजर हैं और पावर BI डेस्कटॉप कभी नहीं देखा आपने, तो आपके लिए ट्रांजिशन थोड़ा सा डिफिकल्ट इस सेंस में होता है कि इसका यूजर इंटरफेस बहुत डिफरेंट है फ्रॉम एक्सेल। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कि एक्सेल जैसा इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, ठीक है ना, इसमें आपको रॉस दिख रही है, कॉलम्स दिख रहे हैं, टेबल दिख रहे हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा आपको इसके अंदर। ये बिल्कुल ही डिफरेंट यूजर इंटरफेस है, बेशक है जरूर ये डिफरेंट, लेकिन क्या होता है आपको थोड़ा ही टाइम लगता है जब इसके जैसे हम कहते हैं ना फजाइल देखते हैं, अब इसकी खूबियां देखते हैं, तो आप खुद ब खुद आपके लिए जो है उसके लिए एडजस्ट करना आसान हो जाता है आपके लिए, क्योंकि एक्सेल के मुकाबले में जो यहाँ रिपोर्टिंग है ना वो बहुत, जैसे हम कहते हैं ना कि बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। तो आप राइट अवे डेटा इंपोर्ट करें और यहीं से इसी स्क्रीन के ऊपर आप डैशबोर्ड बनाना शुरू करते हैं। एक्सेल में तो ये है ना, पहले पिवट टेबल बनाएंगे, फिर उससे चार्ट बनाएंगे, फिर उससे आप डैशबोर्ड पे अरेंज करेंगे, बट यहाँ पर आप राइट अवे डेटा इंपोर्ट करें, डेटा इंपोर्ट करने के साथ साथ आप जो है यहाँ पे डैशबोर्ड बनाना शुरू कर दें। जी, तो इस डेटा इंपोर्ट के पावर क्वेरी वगैरह आप पहले कर चुके होंगे सारा, या स्क्रैच से भी आप कर सकते हैं, यानी समझे आपके पास आपने एक्सेल पे काम किया ही नहीं, यानी आपने वो जो हमने पहले सीखा है वो नहीं किया आपने, आप
आप फ्रेश जो है वो पावर BI डेस्कटॉप से ही काम शुरू कर रहे हैं। वेब से उठाया ना जैसे इन्होंने। हाँ, वेब से उठाया, और मल्टीपल सोर्सेज से आप, और स्क्रैच से बिल्कुल फ्रेश आप स्टार्ट कर सकते हैं कि आप अज्यूम करेंगे आपने एक्सेल पे नहीं किया हुआ काम कुछ भी, आप यहीं से स्टार्ट ले रहे हैं, यहाँ से भी सारा कुछ आएगा, वैसे ही इंपोर्ट होगा सारा कुछ। इवन कि यहाँ जो डेटा कनेक्टर्स हैं वो एक्सेल के मुकाबले में कई गुना ज्यादा हैं और अपडेट होते जा रहे हैं, यानी जो सोर्सेज हैं जिनसे आप कनेक्ट करके डेटा उठा सकते हैं वो इस वाले में एक्सेल के मुकाबले में कई गुना ज्यादा हैं और वो रेगुलर बेसिस पे अपडेट होते जा रहे हैं वो कनेक्टर्स हैं। तो वो है, और फिर वो आप उसी तरह मॉडल भी बनाएंगे, बल्कि इनहैंस फीचर्स हैं एक्सेल के मुकाबले में यहाँ पे। तो आप वो स्क्रैच से बिल्कुल सारा मॉडल बना के डैक्स लिखें इसके अंदर, क्वेरी भी इसके अंदर ही बिल्ट इन है, पावर पिवट भी इसी के अंदर बिल्ट इन है, और आप ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है यहीं से आप जो है वो डैशबोर्ड बनाना शुरू कर देते हैं। सिंपल, मतलब अगर आप कोई टेक्स्ट ना भी लिखे उसके बगैर भी आप डैशबोर्ड बना सकते हैं। ठीक है, ये जैसे एक डैशबोर्ड है, ये पूरा बना है, पावर BI डेस्कटॉप का डैशबोर्ड है ये। फुल स्क्रीन जा नहीं रहा, पता नहीं क्यों। खैर, तो ये आपका जो है वो ऐसे एक और ये फाइनेंशियल डैशबोर्ड है आपका जो ये पावर BI डेस्कटॉप में बना हुआ है, और इसमें रेगुलर बेसिस के ऊपर फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट ऐड करता जा रहा है। अभी जैसे रिसेंटली बहुत, जिसे कह लें कि लास्ट नवंबर से 23 के और अब तक जो है वो बहुत, जैसे कह लें ना कि सब्सटैंशियल किस्म के चेंजेस इसके अंदर आए हैं और अपग्रेड्स आई हैं इसके अंदर। जैसे अभी फैब्रिक की बात हुई है तो फैब्रिक की इंटीग्रेशन, फैब्रिक का यानी फैब्रिक पे आएंगे तो मैं बताऊंगा उसमें डिटेल में। तो ये डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड एक्सेल पे इतना आराम से नहीं बन सकता, यानी इसके जो विजुअल्स है ना आपको देखने में एक्सेल के जैसे ही दिख रहे हैं। यहाँ पे बार चार्ट है, कॉलम चार्ट है, अपना मैप तो खैर एक्सेल में आपको अवेलेबल नहीं है, 365 में अवेलेबल, बट मैप है आपके पास, और इस तरह से नीचे टेबल आ रहा है आपके पास। इवन के ऊपर जो आपको समरी दिख रही है, ये समरी मैंने लिखी नहीं है हाथ से, ये ऑटो जनरेटेड है, जो AI फीचर है इसका, स्मार्ट समरी, स्मार्ट नैरेटिव कहलाता है आपका। ये ऑटो जनरेटेड समरी है और ये अपडेट होती है, यानी डायनामिक है, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे फिल्टर चेंज करूंगा तो यहाँ पे वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। तो ये इसने खुद जनरेट करी है। तो इसमें जो 3-4 AI टूल्स हैं उसमें आपको किसी किस्म की कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं है, आप जस्ट क्लिक करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये एक डैशबोर्ड है सेल्स का, ये सब पावर BI डेस्कटॉप यूज करते हुए बनाएंगे। KPIs हैं ऊपर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, समरी है, अगेन ऑटो जनरेटेड है समरी है आपके पास। ये साइट के अंदर भी KPIs हैं आपके पास, लेफ्ट साइड के ऊपर डिफरेंट टाइप के चार्ट्स अवेलेबल हैं आपको। और ये जो विजुअल्स हैं दे देमसेल्व्स आर एक्ट एज ए फिल्टर, ठीक है ना। एक फिल्टर ये जो आपको वहाँ दिख रहा है, और एक फिल्टर ये विजुअल्स खुद भी फिल्टर के तौर पे एक्ट करते हैं। आप कहीं पे जाके क्लिक करें बाहर के ऊपर पूरा डैशबोर्ड जो फिल्टर हो जाता है इसके हिसाब से। सॉफ्टवेयर से ये डेटा उठाते हैं उसको हम एक्सेल फॉर्म में देख जाते हैं, ठीक है, जैसे उसके लैब में बिल्कुल जगह पे मार्जिन लगा। हाँ, तो अगर हम एडिटिव जिसको डालना होता है कि आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से सीधा करके डालना है, सीधा करके डालना है, उसके बगैर तो रिपोर्ट बनेगी नहीं। सीधा करने के लिए पावर क्वेरी है आपके पास। पावर क्वेरी है, देखिए आप हमारे पास इस कोर्स के अंदर आपको मल्टीपल, बाय द एंड ऑफ द कोर्स आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे एक काम को करने के लिए, कि आप पावर क्वेरी यूज करके भी डाटा क्लीन कर सकते हैं, आप पाइथन यूज करते हुए भी क्लीन कर सकते हैं, आप SQL के अंदर भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 2-3 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे, जो अब आपके सिनेरियो के हिसाब से कि आपके पास डेटा का वॉल्यूम क्या है, डेटा कितना कॉम्प्लेक्स है, उसके हिसाब से आप टूल इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपको पता सब होंगे। सर अगर एक कोई भी अगर जैसे एक्सेल या नॉलेज लो मतलब उतना ज्यादा फैमिलियर ना हो, वो क्या पावर भी आएगा?
तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन मैंने कहा ना कि एक प्रीरेक्विजिट खाली वो क्या है आपका पिवट टेबल्स बस। और उसके अलावा ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही नोवाइस यूजर हो कि कभी एक्सेल ना इस्तेमाल किया हो, ऐसे यूजर के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़े बहुत फॉर्मूला से फेमिलियर हो, आपके फॉर्मेटिंग मतलब बेसिक एक्सेल, इंटरमीडिएट एक्सेल यूजर है वो बड़े आराम से सीख सकते हैं फॉर्मेट। पर अगेन फरहान साहब ने बात की थी कि पैशन होना, तो आप खुद एक्स्ट्रा एफर्ट करके सीख लेते हैं। नहीं हो तो बहुत सारे ऐसे होते हैं हमारे डिपार्टमेंट जो आधे कोर्स से ड्रॉप हो जाते हैं। सर ऐसा होता है कि कभी हम लोग पीआर द्वारा तो उसमें क्वेरी फाइंड हो गई थी, तो सॉरी मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ, मैं ये प्रेजेंटेशन कंटिन्यू कर लेंगे, उसके बाद फिर क्यूएनए करेंगे तो उसमें हम ये कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे ये अभी फरहान साहब ने जिक्र किया था कि नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी क्या होती है कि प्लेन इंग्लिश के अंदर आप अपने डेटा से सवाल करते हैं, डेटा के मुतालिक सवाल करते हैं और आपको वो रिजल्ट जनरेट करके दे देता है। तो ये जो खाली ब्लॉक नजर आ रहा है यहाँ पर अभी हम ऐड कर रहे हैं क्यूएनए विजुअल। यहाँ ये आपके पास यहाँ सजेस्टेड क्वेश्चंस भी आप ऐड कर सकते हैं फॉर यूजर्स, और आप टाइप भी कर सकते हैं, यानी आप यूजर को अलाउ करते हैं कि वो टाइप करे अपने डेटा की क्वेरी प्लेन इंग्लिश के अंदर, और नीचे देखें आपके पास यहाँ पे जनरेट कर दिया एज पर योर क्वेरी। अगेन वही चैट जीपीटी वाला हिसाब है कि जी जैसा आप प्रॉम्प्ट करेंगे, जैसा आप प्रॉम्प्ट देंगे उसको, जैसा आप क्वेश्चन पूछेंगे वैसे ही जवाब देगा। ठीक है ना, हमें आप शिकायत नहीं कर सकते इससे कि यार ये आपने क्या दे दिया, जो आपने पूछा था वही दिया। तो उसके लिए इसको हम ट्रेन भी करा सकते हैं, ट्रेन कराते भी हैं और यूजर को भी ट्रेन कराते हैं कि भाई ये जैसे सिनोनिम्स है मिसाल के तौर पे, किसी सेल्स के बजाय किसी ने रेवेन्यू लिख दिया या इनकम लिख दिया, तो अब ये सिनोनिम्स हम ऐड करा सकते हैं इसके अंदर ताकि रिजल्ट हमारे एक्यूरेट हो। तो ये आपकी कहलाती है नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी। ठीक है, तो बहुत तरह के यानी ये जब हमारा ये चल रहा होता है ना तो इसमें बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं, यानी ऐसा क्लियर कट ट्रांजिशन नहीं होता है कि जी अब हम फ्रंट एंड पे आ गए और अब हम बैक एंड पे चले गए, बल्कि ये इंटीग्रेटेड होता है। तो मिसाल के तौर पे जैसे अब ये टाइटल पड़ा हुआ है इसके ऊपर, अब ये जो टाइटल है ना इसके साथ ये इमेज जुड़ा हुआ है, जैसी कैटेगरी चेंज होगी तो इमेज भी चेंज होगा। अब ये जो आपको दिखने को तो ये आपको वैसे दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे एक फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक है ना। अब हम फ्रंट एंड पे काम कर रहे होंगे तो साथ साथ हमें उस पे चीजें दिखाने के लिए पीछे डैक्स भी लिखना पड़ेगा। तो ये सब कुछ इंटीग्रेशन के अंदर चल रहा है ये सारी चीजें, ऐसे आइसोलेशन में नहीं कि जी फ्रंट एंड पे चल रहा है तो फ्रंट एंड नहीं चल रहा है और बैक एंड पे नहीं काम हो रहा, दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं। जैसे ये समरी है, ये समरी अभी तो ऑटो जनरेटेड है, बट ये समरी हम देखते हैं आगे चल के जब एडवांस टैक्स देख रहे होते हैं कि वहां पर आप, क्योंकि इस समरी के ऊपर इतना कंट्रोल नहीं होता यूजर को, इसने जनरेट कर दी बस जो विजुअल थे उस पर जनरेट कर दी, बट आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, छोटी मोटी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि बिल्कुल ही कस्टमाइज करते हैं तो नहीं कर सकते। हम डैक्स यूज करते हुए यही समरी बनाएंगे खुद से लिख के, और जो कि मजीद उसमें बहुत सारे तरह के एनालिसिस होगा, बहुत तरह की चीजें होंगी उसके अंदर और सब डायनामिक होंगी। तो ये हम जो है वो इंशाल्लाह इसमें कवर करेंगे। ठीक है ना, तो ये जो है वो अप्रोक्सीमेटली हमारा सेकंड मंथ कंप्लीट हो गया इस तरह से। थर्ड मंथ जब हमारा स्टार्ट होता है उसमें हम ये एडवांस पावर क्वेरी में बहुत सारी चीजें बेसिकली उसके अंदर जो है वो जो कोडिंग है इसकी, जो एम लैंग्वेज है आपकी वो आ जाती है, उसमें डिफरेंट सिनेरियोज हैं आपके पास। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो ऐसा होता है कि जो आपके पास एक फोल्डर के अंदर डिफरेंट फाइल्स पड़ी हैं और आप उसको कनेक्ट करके सबको कंबाइन कर रहे हैं और फिर उसको एनालाइज कर रहे हैं, बट उसमें ये होता है कि एक उसमें कंडीशन ये होती है कि जितनी फाइल्स हैं सब एक तरह की होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, हेडर्स भी सेम होने चाहिए, तब हम उसको कंबाइन कर पाएंगे विदाउट राइटिंग एनी कोड। ये वो वाला सिनेरियो है। बट एक सिनेरियो ऐसा होता है जो कि प्रैक्टिकल है कि आपके पास एक फोल्डर के अंदर 6 फाइलें पड़ी हुई हैं, वो 6 महीने तक तो एक जैसी थी, फिर 7वें महीने से उसमें एक कॉलम ऐड हो गया, आप कैसे कंबाइन करें, उसके लिए फिर कोड चाहिए होगा, तो उसके लिए हम कोड लिखते हैं। और वो कोई कोड ऐसा नहीं है कि जो है 8-10 लाइनों का कोड लिखना पड़ेगा, छोटे छोटे कोड हैं, स्निपेट जैसे हम कहते हैं कि जी एज ए टेम्पलेट के तौर पे आप वो 2-3 इस तरह के यूज केसेस हैं जो कि अक्सर आपको पेश आते हैं डेटा क्लीन करते वक्त, तो वो हम वहाँ पर वो इंशाल्लाह कवर करेंगे। ये एडवांस एडिटर है पावर क्वेरी का, इसमें हम कोड जो है वो लिखेंगे या पहले से जो कोड रिकॉर्ड हुआ है उसको मॉडिफाई करके देखेंगे कि वो कैसे कर सकते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगेन फिर कुछ एडवांस केसेस हैं, यूज केसेस हैं जो एनालिसिस के हैं, वो हम इसके अंदर जैसे
क्रॉस फिल्टर है, यूज रिलेशनशिप है, और बहुत सारे हैं। तो वो हम बेसिकली जो हमारा मेथड होता है वो क्या होता है कि हमने एक डेटा सेट उठाया, यूजुअली सेल्स होता है, बट हम उसके साथ साथ जो है वो एचआर का डेटा भी साथ में एक दफा एचआर का डैशबोर्ड भी बिल्ड करते हैं, इसी तरह से फाइनेंस का डैशबोर्ड भी बिल्ड करते हैं कि जी पीएनएल बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, उसको एनालाइज करना है, जैसे वर्टिकल मतलब ये कल मुश्किल है। तो वो किस तरह से परफॉर्म होता है, तो वो सारी चीजें हैं उसके अंदर। तो उसी में ये सारे के सारे फॉर्मूलाज यूज होते हैं, एडवांस फॉर्मूलाज भी और होते हैं बेसिकली, तो कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली। तो अगेन वो इस तरह से नहीं होगा कि अब हम एडवांस सीख रहे हैं, नहीं, वो एक सिनेरियो होता है जिसको हम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उसमें एडवांस भी आ जाते हैं, उसके अंदर बेसिक भी आ जाते हैं, तो कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर सारे के सारे। ठीक है जी, तो ये आगे आपके पास मॉडलिंग, देन फिर जो पानी दियो बेटा, इसके अंदर जो पानी दे, पानी। फीचर्स हैं, तो जिसके अंदर अभी हमने दो तो देखे कि जी एक तो हमारे पास स्मार्ट समरी है, एक आपके पास Q&A है, और इसी तरह से दो और है आपके पास, एक की इन्फ्लुएंसर्स हैं और एक डीकम्पोजिशन ट्री। की इन्फ्लुएंसर्स क्या है कि मिसाल के तौर पे आपके पास अगर आप देखना चाहें कि जी सेल्स में इंक्रीज हुआ तो उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो वो उसके फैक्टर्स जो है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि आपका डेटा कितना स्ट्रक्चर्ड है, कितना ऑर्गेनाइज्ड है, तो उस डेटा से ही वो एनालिसिस बनाता है। अगर आपके डेटा में ऐसा कोई फैक्टर है ही नहीं तो वो माजरत कर लेगा कि भाई ऐसा कुछ है नहीं आपके जो हमें मिला नहीं, कि जो कि हम देख सकें कि ये इम्पैक्ट कर रहा है सेल्स के इंक्रीज के अंदर या डिक्रीज के अंदर। तो इसलिए आपके लिए उसके लिए डेटा प्रिपेयर करना जरूरी है, तो प्रिपेयर से मुराद के ऑर्गेनाइज होना जरूरी है ताकि आप इनसे बेनिफिट ले सकें। यही कॉम्पोजिशन ट्री, डीकम्पोजिशन ट्री का भी है। तो ये विजुअल हम जो है साथ साथ इंक्लूड करेंगे, जो हमारा डैशबोर्ड बन रहा है उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। ऐसी इसके अंदर फीचर्स हैं डिफरेंट, जो कि बिल्ट इन फीचर्स हैं, जैसे क्लस्टरिंग है, ग्रुपिंग है, आपके फोरकास्टिंग है। फोरकास्टिंग इसके अंदर बड़े ज़बरदस्त बिल्ट इन फीचर्स हैं कि आप जो है वो फोरकास्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, पीरियड सेट कर सकते हैं, कितने पीरियड के लिए आपको फोरकास्टिंग देखनी है, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा, वो सारी चीज़ें आप उसके अंदर सेट करके वो देख सकते हैं। इसके अंदर मीन, मीडियन और मोड की लाइंस आप ऐड कर सकते हैं डेटा के ऊपर ताकि आप एनालाइज कर सकें उसके साथ। तो ये काइंड ऑफ मशीन लर्निंग है जो कि आपके पास इसके अंदर, यानी मशीन लर्निंग तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये जो आपके जैसे प्रेडिक्टिव एनालिसिस हैं और दूसरे, उसके अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल होती है। और साथ साथ ही सारी चीज़ों के साथ साथ ही ये तो सारा काम हो रहा है अभी डेस्कटॉप के अंदर, ठीक है। तो लेकिन इसका जो बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है और जो एसेंशियल पार्ट है कि जब आपने डैशबोर्ड बना लिया, सारा काम कर लिया, अब जब आप इसको शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करने के लिए आप डेस्कटॉप से शेयर नहीं करेंगे, बल्कि आप इसको अपलोड करेंगे या पब्लिश करेंगे टू पावर बीआई सर्विस, जो कि क्लाउड सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट की, और वहाँ पब्लिश करने के बाद वहाँ से शेयर करेंगे आप। तो वहाँ तक तो यदि अकाउंट बनाने तक पैसे नहीं मांगता माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन जब आप शेयर कराने की बारी आती है ना, वहाँ पे कहता है कि भाई अब आपके पास भी लाइसेंस होना चाहिए और जो जो व्यू करेगा उसके पास भी लाइसेंस होना चाहिए। हाँ हाँ, आपकी कंपनी में अगर आप दे रहे हैं तो आपकी कंपनी में आप जो आप शेयर करा रहे हैं उसके पास भी कम से कम प्रो लाइसेंस होना चाहिए, और जो व्यू करेगा उसके पास भी लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, वो आपकी कंपनी का भी हो सकता है एम्प्लॉय, और वो आउटसाइड ऑफ योर कंपनी भी हो सकता है, लेकिन दोनों सूरतों में उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, वो लाइसेंस अगर आप देखें, कंपेयर करें दूसरे जो इसके कंटेम्प्रेरीज हैं, जैसे टेब्लो की बात हो रही थी, क्लिकसेंस की बात हो रही थी, तो उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। यानी ये $10 पर यूजर पर मंथ है, ठीक है, जबकि वो आई थिंक $75 पर यूजर पर मंथ है आपका टेब्लो इसमें। और क्लिकसेंस का भी ऐसे है, लुकर का भी ऐसे ही है, गूगल का जो डेटा स्टूडियो है उसके भी ऐसी लाइसेंसिंग कॉस्ट है। तो वो वहां पर फिर आपका, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग आपको ये बेनिफिट है कि जब आप साइन अप करेंगे तो साइन अप करने के बाद आपको 60 डेज का फुली फंक्शनल ट्रायल देता है। इसमें सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, प्रो वाले भी और प्रीमियम वाले। तो आप प्रैक्टिस के लिए तो फ्री यूज कर सकते हैं, साइन अप करना है बस आपको, लेकिन साइन अप के लिए जरूरी है कि आपका जो है वो ईमेल आईडी जो है वो वर्क ईमेल आईडी होनी चाहिए।
यानी फ्री ईमेल आईडी एक्सेप्ट नहीं करता, जैसे जीमेल है, हॉटमेल है, याहू है, ये एक्सेप्ट नहीं करता साइन अप करने के लिए। वर्क ईमेल आपके अपनी जैसे ऑफिस की आईडी है, इसमें डोमेन का नाम आ रहा हो आपके, ऐसी कोई भी, या अपना खुद डोमेन ओन करते हो, कोई वेबसाइट आपकी है अपनी, तो वो उसका ईमेल आईडी, या फिर आप जो है वो ऑफिस 365 पे साइन अप कर लें, वो एक आईडी जनरेट कर देता है आपको, वो यूज कर लें। लेकिन बहरहाल आपकी वर्क ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो वो हम फिर देखेंगे कि किस तरह से इसको आप पब्लिश करते हैं, और फिर वहाँ कौन कौन से ऑप्शन हैं आपके पास शेयर कराने के लिए, डैशबोर्ड में उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सारी चीजें उसमें देखेंगे। और देन फाइनली अराउंड ये हमारे 2-2.5 महीने के करीब ये हो गया हमारी, यानी तो समझे आपके 10 क्लासेस के करीब हो गई हैं। फिर हम आ जाते हैं एसक्यूएल पे। एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है ना। अभी क्वेरी लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस से डेटा को क्वेरी करने के लिए इस्तेमाल होती है मोस्टली, और इसके अलावा भी इसके फंक्शन है, बहुत वास्ट लैंग्वेज है ये। लेकिन हमारा जो इस कोर्स की हद तक वो होगा, इसको वो क्या होगा कि डेटा आप रिट्रीव कैसे कर सकते हैं। तो एज एन एनालिस्ट आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि जाके टेबल के अंदर कॉलम क्रिएट करो या कॉलम डिलीट करो, बल्कि आपको जो आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डेटाबेस चल रहा है, चाहे वो ओरेकल है, चाहे एसक्यूएल है, चाहे वो DB2 है, चाहे सैप है, तो कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटर होगा, और वो आप मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होंगे एज एन एनालिस्ट, ठीक है। आपको आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक टेबल का या व्यू कहलाता है बेसिकली, व्यू का एक्सेस दे देगा, जिसमें टेबल डेटा पड़ा होगा। आपने उस टेबल में से जो आपके डेटाबेस में मौजूद है, वहां से डेटा पुल करना है पावर BI के अंदर, ठीक है। वो डेटा बहुत बड़ा हो सकता है, वो 8-10 साल का डेटा भी हो सकता है, उसके अंदर बहुत वॉल्यूमनस होगा। तो आप उसमें से क्वेरी लैंग्वेज यूज करते हुए, जो डेटा की है, यानी SQL जो है आपकी SQL है, उसको यूज करते हुए कैसे फिल्टर्ड डेटा पावर BI के अंदर लेकर आते, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि पावर क्वेरी जो है उसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि सर्वर साइड से ही वो फिल्टर करते हैं डेटा को, बल्कि पहले आप पूरा डेटा लेकर आएंगे यहाँ पे, फिर फिल्टर लगाएंगे उसके ऊपर। तो डेटा तो आ गया आपके पास, सही ना, आपका 1 बिलियन रॉज का डेटा था मिसाल के तौर पे, या 10 मिलियन रॉज का डेटा था आपके पास, वो आप पहले पूरा लेकर आ गए, इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे, अब कर लिया तो फाइल साइज तो बढ़ गया ना आपका, यहाँ फिल्टर लगाते रहे आप 10 फिल्टर। SQL आपको अलाउ करता है कि आप लिमिटेड डेटा वहीं से ही लिमिटेड डेटा उठा के लाएं, ताकि यहाँ आपके फाइल साइज कम हो जाए। तो ये सारी टेक्निक जो है वो हम SQL के अंदर सीखेंगे इंशाल्लाह, कि किस तरह से आप जो है वो डिफरेंट जो SQL की कमांड्स है उनको यूज करते हुए डेटा यहाँ पर लेकर आते हैं, रिड्यूस डेटा लेकर आते हैं यहाँ पे, और फिर उसको एनालाइज करते हैं। तो वो, और ये क्यों हमने ऐड किया, क्योंकि अब अगर आप JDs देखें ना, इस वक्त ग्लोबली जो जॉब हंटिंग साइट्स हैं उनके ऊपर अगर आप देखें कि यार एनालिस्ट की जो JD है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसमें इन्होंने एसेंशियल स्किल के अंदर ऐड कर दिया SQL वाला। तो वो जमाने के जब सिर्फ एक्सेल के एक्सपर्ट बुलाया जाता है, तो एक्सेल के एक्सपर्ट काफी नहीं है, वहाँ एक्सेल भी आना चाहिए, BI टूल भी आना चाहिए, ठीक है। प्रेफरेबली जो 2 टूल्स जिससे मांगे जा रहे हैं, पावर BI है, टेब्लो है, ठीक है ना। उसमें से पावर BI इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ये इजी टू लर्न है। जो लोग MS ऑफिस यूजर हैं वो पावर BI भी सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो वो जो है, और प्लस उसके अंदर SQL जो है वो कंपलसरी आपकी स्किल सेट है। सारी बात कहते हैं कि जी अब आपके IT वाले के पास बहुत काम है और तो आपको दे देगा, तो आप जो है वो क्या करेंगे, खाली आपने डेटा, अब आपको टेबल मिल गया, अब आप अपनी मर्जी से डेटा लें और उसको जो है वो इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये SQL वाला पार्ट होगा हमारा। एंड देन फिर हम मूव करते हैं पाइथन की तरफ। तो पावर BI के अंदर आपके पास SQL की इंटीग्रेशन भी अवेलेबल है, और पाइथन की भी इंटीग्रेशन है। अब पाइथन अगेन बहुत वर्सटाइल लैंग्वेज है, बहुत सारे काम पाइथन के अंदर हो रहे हैं। इनफैक्ट आप स्टैंड अलोन डेटा एनालिसिस और प्रेजेंटेशन पाइथन में कर सकते हैं, पूरा डैशबोर्ड बना सकते हैं। पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज हैं जिनमें आप पूरा डैशबोर्ड पाइथन के ऊपर ही बना सकते हैं। बट यहाँ पर जो हमारा मेन फोकस है वो पावर BI है,
तो पावर बीआई को हम पावर बीआई की अपनी रिपोर्ट को कैसे कैसे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हुए एनहांस कर सकते हैं, उसी के अंदर एक पाइथन है आपके पास। ये आप जो है वो डेटा की क्लेंजिंग, अगेन मैंने कहा कि जी अब आपके पास दो टूल हो गए ऑलरेडी, एक आपके पास हो गया पावर क्वेरी, एक हो गया आपका एसक्यूएल, और तीसरा आपके पास पाइथन। तो पाइथन के अंदर आप जो है वो जिनकी नोटबुक्स होती हैं, नोटबुक भी लाने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपली जो कोड है आपका पाइथन का स्क्रिप्ट जो कहलाता है आपका, वो आप कोड सिंपली पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर पेस्ट करें और वो रन करेगा आपके डेटा के ऊपर। तो आप डेटा वहाँ से डेटा फैच भी कर सकते हैं पाइथन का कोड लिख के, उसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, डेटा क्लीन भी कर सकते हैं, और फिर जो है वो डेटा जो क्लीन डेटा है वो कोड के थ्रू आपके पावर बीआई के अंदर आता है और फिर आप उससे अपना डैशबोर्ड बनाएंगे। तो वो भी है, और प्लस जो हमने अभी जिक्र किया कि जी मशीन लर्निंग का जो मॉड्यूल हमने ऐड किया है, ऑल्दो कि वो इंट्रोडक्टरी मॉड्यूल है, लेकिन वो भी पाइथन की ही लाइब्रेरीज को यूज करते हुए आप एक मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो बनाते हैं, और उसको इसी कोड की जो जो इंटीग्रेशन है आपके पावर बीआई के अंदर, उसी की मदद से आप जो है वो पूरा मॉडल अपने डैशबोर्ड के अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जो जो उसके आउटकम्स हैं, जैसे आप एक सिंपल हम क्या कर रहे होते हैं, ट्रेन कर रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद उसका जो आउटकम होता है मशीन लर्निंग का, वो हम किस तरह से उसकी जो वैल्यूज आई हैं उनको हम अपने डैशबोर्ड के अंदर किस तरह से इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस किस तरह से हम फॉर्म कर सकते हैं, या कुछ ऐसे स्पेसिफिक विजुअल्स हैं जो कि आप पावर बीआई के अंदर अवेलेबल नहीं होते आपको, तो वो विजुअल्स भी आप जो है वो पाइथन की लाइब्रेरी जैसे मैटप्लॉटलिब है या सीबॉन है वो यूज करते हुए आप वो विजुअल्स भी पावर बीआई के अपने डेस्कटॉप में दिखा सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं जो वो हम इंशाल्लाह इसके अंदर देखेंगे। एंड देन हम आ जाते हैं अपने जो ये अभी हमारा हमारा क्या मतलब माइक्रोसॉफ्ट का भी रिसेंट एडिशन है, ऑल्दो कि इसको अब तकरीबन साल भर हो जाएगा, लास्ट ईयर ये जुलाई के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक। ये बेसिकली क्या है कि वन विंडो सोल्यूशन है फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन, जो जो कि डेटा के यूजर हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके आने से पहले सब अलग अलग डेटा को यूज कर रहे होते थे, डेटा इंजीनियर जो है वो अलग टूल्स इस्तेमाल कर रहे होते थे, डेटा साइंटिस्ट अलग टूल इस्तेमाल करते थे, डेटा एनालिस्ट है वो अलग टूल्स इस्तेमाल कर रहे होते थे। अब इन्होंने क्या किया कि एक ही विंडो के अंदर सारे टूल्स लेकर आ गए। अब जैसे आप पूछ रहे थे ना कि जी पावर बीआई खाली इस्तेमाल होगा या दूसरे टूल्स भी हैं, पावर बीआई उसका एक पार्ट है। पावर बीआई का यूजर फैब्रिक यूज कर सकता है, लेकिन उसके अलावा भी टूल्स हैं जो कि दूसरे, यानी जब आप बड़े स्केल पे जाते हैं तो फंक्शंस चेंज हो जाते हैं। जैसे जो ETL का प्रोसेस है वो डेटा इंजीनियर का काम, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड वाला काम जो है वो डेटा इंजीनियर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये वाला काम करते हैं। उसके लिए वो डिफरेंट टूल इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर वो जो है वो आपके डेटा फ्लोज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डेटा पाइपलाइंस यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अभी आपने पावर बीआई के अंदर नहीं सुना होगा, अगर पावर बीआई जानते हैं तो पावर बीआई में ये टूल्स मौजूद नहीं होते, ये आउटसाइड ऑफ पावर बीआई टूल्स, ठीक है। उसमें लेक हाउस आ जाता है, उसके अंदर जो है वो डेटा आपके डेटा फैक्ट्रीज आ जाती हैं, ठीक है ना। फिर उसके अंदर डेटा वेयर हाउस है, जैसे फरहान साहब ने कहा डेटा वेयर हाउस है, डेटा मार्ट्स हैं, ठीक है ना। तो ये सारे टूल्स वो हैं, ये सब इनका मतलब इंट्रोडक्शन ही है, लेकिन बहरहाल ये सारे टूल्स हम कवर करेंगे इसके अंदर। जी डेटा फ्लोज जेन 2 बेसिकली क्या है आपका पावर बीआई यूजर के हवाले से कि पावर बीआई के अंदर जो पावर क्वेरी है वो उसका नाम फैब्रिक के अंदर उन्होंने डेटा फ्लो जेन 2 रख दिया, ठीक है ना। तो ये जैसे ये एक पिक्चर है डिस्क्राइब कर रही है, इसके अंदर क्या डेटा फैक्ट्री भी आ रही है, साइनैप्स वीडियो में आपने नाम सुना था, साइनैप्स डेटा एनालिटिक्स है वो है इसके अंदर अवेलेबल, वेयर हाउसिंग है, डेटा एनालिटिक्स है, पावर बीआई भी है और एक्टिवेटर भी है, सही है ना। तो ये सारे डिफरेंट टूल्स हैं जो इन्होंने एक जगह कंबाइन कर दी। ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदा क्या है कि ये लाइसेंस के इसी एक लाइसेंस के अंदर ये सारी चीजें मिल रही हैं, वरना अलग अलग लाइसेंस लेने पड़ते थे ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो लाइसेंस का खर्चा अलग था और फिर ये सब अलग अलग थे, यानी एक डुप्लीकेशन हो रही है, पहले वो एक जगह एक काम कर रहा है फिर वो दूसरे को दे रहा है, वो दूसरा अलग से दोबारा काम कर रहा है। अब ये सारा का सारा एक सिंक के अंदर आ जाता है फैब्रिक के अंदर, किसी डेटा इंजीनियर्स ने अपने टूल इस्तेमाल किए, उन्होंने काम किया अपना आगे फॉरवर्ड कर दिया, आगे वहाँ से साइंटिस्ट है उसने नोटबुक बनाई अपनी स्पार्क कहलाती है, उसके अंदर वो अपना काम कर रहा है, मशीन लर्निंग मॉडल बना रहा है जो ये पावर बीआई के जो सेल्फ सर्विस यूजर कहलाता है, बेसिकली डेटा बना दे दिया, अब अपना डैशबोर्ड खुद बना लो। ये वो वाला यूजर है, वो भी उसके लिए भी डेटा मौजूद है, वहीं पर ही मौजूद है, वहीं से डेटा उठाएगा, पावर बीआई डेस्कटॉप में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं उसको, यहाँ पे आप बनाए अपलोड कर दें दोबारा से, या वहीं क्लाउड के अंदर बनाए और डैशबोर्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दें, वहीं से शेयर करते हैं आप।
ये इस तरह का प्लेटफॉर्म है जो आपको जो है वो अवेलेबल है, और हम इसमें थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें जो है उसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है ना, ये इसका एक ओवरव्यू है। ब्राउजर के अंदर आपके टोटली क्लाउड बेस्ड है, कोई इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, सिर्फ और जो आप पावर बीआई का साइन अप करेंगे उसी साइन अप से यूज करते हुए आप जो है वो फैब्रिक को भी साइन अप कर सकते हैं। ये भी आपको 60 डेज का फ्री ट्रायल देगा। ठीक है ना, तो ये देखें यहाँ पर ये इसका व्यू है जो वर्किंग पावर बीआई के हवाले से मिलती जुलती है। डेस्कटॉप भी आपको अवेलेबल होगा यहाँ पे, अपनी रिपोर्ट यहीं डिजाइन करके यहीं से शेयर कर सकते हैं अपना डैशबोर्ड जो आपका पूरा का पूरा। फैब्रिक में यूजर्स ऐड होते हैं, वर्कस्पेस होती है ना, उसमें डिफरेंट यूजर्स ऐड हुआ, आपके ऑर्गेनाइजेशन वाले सारे भी हो सकते हैं, या एक ग्रुप है फाइनेंस वालों के लिए अलग एक वर्कस्पेस बना दी, उनका डैशबोर्ड बनाया, उनको एक्सेस दे दिया उसका, वो सब उसको एक्सेस कर। हाँ, ऐसी सेल्स वालों के लिए अलग बना दिया, प्रोक्योरमेंट वालों के लिए अलग बना दिया, और वो यूजर्स आपके रजिस्टर्ड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लाइक ये डिफरेंट मॉड्यूल, हाँ इंटीग्रेटेड है, एंड दे हैव देयर डिफरेंट मॉड्यूल्स असाइन्ड टू डिफरेंट यूजर्स। ठीक है ना, तो ऐसी यहाँ पे वर्क स्पेसेस होती हैं, वर्क स्पेस के अंदर फिर आपने लेक हाउस बना लिया, या आपने जो है वो डेटा फैक्ट्री बना ली, और फिर उसके अंदर जो है तो ये सारा जो है उसके, और फिर इसके अंदर ये सारी नॉलेज जो आप पीछे सीख चुके हैं ना, एसक्यूएल की, पाइथन की, ये सब यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो सकती है आपके पास। ठीक है ना, और इन अ बेटर वे। यानी एक तो वहाँ पे कुछ लिमिटेशन है, एसक्यूएल है, अब एसक्यूएल आप यूजुअली जो है वो डेटाबेस के अंदर का डेटा है तो एसक्यूएल लगा के आप उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप किसी भी सोर्स से डेटा अपलोड करें डेटा लेक के अंदर, और आपको वो वहीं पर ही राइट अवे एसक्यूएल एंड पॉइंट क्रिएट कर देता है। यानी आपका एक्सेल का डेटा है, सीएसवी का डेटा है, उस पर आप एसक्यूएल की क्वेरी लगा सकते हैं, उस डेटा पे भी लगा सकते हैं वहीं पर, और फिर अपनी रिपोर्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आपका है फैब्रिक। और फिर इसमें आपके पास बहुत सारी डिफरेंट सोर्सेज आपको मजीद अवेलेबल हैं। आप जो है एज़्योर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इसको, और दूसरी सोर्सेज हैं, शॉर्टकट्स बना सकते हैं डिफरेंट। खैर वो जो हम करेंगे इंशाल्लाह तो उसके अंदर देखेंगे। तो ये आपके पास है वो देखिए, ये रिपोर्ट यही पूरी डैशबोर्ड बन गया पूरा फैब्रिक के अंदर, और आप यहीं से आप इसको, और ये ऑटो क्रिएट हुआ है, ये बनाया नहीं है, ये ऑटो क्रिएट हो गया। ठीक है ना, मतलब अपडेट कर रही है डेटा। हाँ, वो तो इसका प्राइमरी फीचर है ना, कि अगर बैक पे डेटा आपका अपडेट हो रहा है। हाँ, तो ये ऑटो करेगा या नहीं, इसमें दो तरीके होते हैं, दो तरीके ये हैं, और अगेन वो लाइसेंस के ऊपर बेस करते हुए हैं कि लाइसेंस टाइप्स के हिसाब से है वो फीचर। जैसे ऑटो अपडेट का जो फीचर है वो इसमें प्रीमियम लाइसेंस के अंदर अवेलेबल है। इधर आपका फैब्रिक का लाइसेंस हो तो फैब्रिक के अंदर आप स्केड्यूल कर सकते हैं रिफ्रेश थ्रू पाइपलाइन या थ्रू डेटा फ्लो जेन 2। इसके अंदर दो ऑप्शन है जिनमें आपने डेटा कनेक्ट किया हुआ सोर्स के साथ। अब आप वो भी डिपेंड करता है फिर कि आपके डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, ऑफलाइन पड़ा हुआ है आपके पास, ऑन प्रेमिस है तो वो गेटवे की कॉन्फ़िगरेशन है, ऑनलाइन पड़ा हुआ है तो भी है। तो बहरहाल लेकिन दोनों सूरतों में अगर आपके पास फैब्रिक है तो आप रिफ्रेश स्केड्यूल कर सकते हैं, लेकिन अगर फैब्रिक नहीं है आपके पास, सिर्फ पावर बीआई है, तो उसमें अगर आप स्केड्यूल करना चाहेंगे रिफ्रेश को तो उसके लिए प्रीमियम लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। और दूसरा एक और फीचर भी होता है जो कि मोस्टली ये करते हैं कि जी वो क्वेरी फोल्डिंग कहलाता है, वो माइक्रोसॉफ्ट के डेटाबेस पे तो बहुत अच्छा चलता है, दूसरों पे कोई गारंटी नहीं होती उसकी। ठीक है ना, तो वो बेसिकली करता ये है कि आपके डेटा को, बहुत बड़ा डेटा है आपका, तो वरना ये रिफ्रेश क्या करता है, जब आप रिफ्रेश चलाते हैं तो शुरू से रिफ्रेश करता है, तो कई घंटे लग जाते हैं रिफ्रेश होने में। तो स्केड्यूल करने में क्या होता है कि ये उसके वो बना देता है, पार्टीशन कर देता है। तो आप कहते हैं कि नहीं जी जब भी रिफ्रेश में चलाऊं तो आखिरी महीने का खाली जो है रिफ्रेश करना है। तो ये चीज़ जो है लाइसेंस का फीचर है, लाइसेंस फीचर है इसका। हाँ जी, फी स्ट्रक्चर अभी फ्रांस साहब आपको डिस्क्राइब कर देंगे इंशाल्लाह। तो बस ये तो है हमारा
बाकी ये सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है, ये तो फिर आप वैसे भी उसको सर्च कर सकते हैं। $10 है पर हाँ। मंथ पर यूजर। और माइक्रोसॉफ्ट बहरहाल इतना जनरस है कि जब आपका एक्सपायर हो जाता है ना, तो आप रिक्वेस्ट करें कि इसको रिन्यू कर दो, तो मजीद 2 महीने आपको दे देते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं करता, बस 2 महीने करके कर देगा आपको। हाँ जी, अगर किसी बंदे ने पहले से लिया हो ऑलरेडी यूज करते हो और न्यू आईडी से क्या करेगा? न्यू आईडी से उस आईडी पे, वर्क वाले। हाँ वर्क वाली, लेकिन हम कह रहे हैं कि पहले से अगर कोई इस्तेमाल कर चुका हो उस आईडी के ऊपर, लाइक अपना एक्सपायर हो गया उसका फ्री वाला जो है ना। साइट पे अकाउंट बना के वो डोमेन खरीदा और उससे मैंने एक आईडी ली। हाँ, तो अगर मैं दूसरी मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन की आईडी से करना चाहूँ ऑर्गेनाइजेशन की आईडी से शायद वो अलाउ कर देता है, लेकिन एक लिमिट तक करता है, 2-4 लोगों को कर देगा, फिर मतलब ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस चलता Allow है। कर देगा भाई। हाँ। अगर हम बात करें तो हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि पावर में डेस्कटॉप की ना, अगर हम मतलब सीखेंगे तो हमारे पास तो ऑप्शन अवेलेबल है, तो पावर में डेस्कटॉप अवेलेबल है। हाँ, लाइसेंसिंग की तरफ हमें जाना पड़ेगा और फिर पब्लिश का ऑप्शन तो इस वक्त पब्लिश का ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं ना, अगर आप फ्री वाला अकाउंट साइन अप कर लेते हैं फॉर इस कोर्स के ड्यूरेशन की हद तक, तो आपके पास वो भी अवेलेबल होगा ना। तो आप साइन अप करेंगे तो 60 डेज आपको ट्रायल मिल जाएगा, सही है ना। तो वहाँ आप करें इस्तेमाल, उसको पब्लिश भी करें, शेयर भी कराएं, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। 2 महीने गुजर जाएंगे तो फिर वो डाउनग्रेड कर देगा अकाउंट, फिर भी नहीं खत्म करेगा, डाउनग्रेड कर देगा। और मैं ये कह रहा था कि अगर खत्म होने पर वो दोबारा कहता है कि जी आप रिक्वेस्ट कर लें कि एक्सटेंड कर दे ट्रायल, तो कर भी देता है वो ट्रायल को एक्सटेंड, ऐसा भी है। तो मतलब आप अपने प्रैक्टिस की हद तक तो कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का, तो फिर आपको बाय करना पड़ेगा लाइसेंस। अपने लिए पर्सनल प्रैक्टिस के लिए आपको होगा अवेलेबल, 60 डेज के लिए होगा। तो ये आउटलाइन का था ओवरव्यू मेरी तरफ से। हाँ, अगर इसमें आपको क्वेश्चन हो, आप कुछ पूछ रहे थे सर? हाँ जी, तो डेटा एक्सेल में बना रहे होते हैं, कभी कभार होता है वो डेटा जो होता है कभी सही नहीं होता, क्या जब हम उसको दोबारा से हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा? नहीं, आपके पास जिस शक्ल में डेटा है ना, अच्छा तो बहुत अच्छा तो ये है कि आप सोर्स में ही सही कर लें उसको, लेकिन किसी वजह से अगर वो सोर्स में ठीक नहीं हो सकता तो हम उसको पावर क्वेरी में लाते हैं। पावर क्वेरी में जब एक बार आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया उसको, तो अब अगली बार उसी बिगड़ी हुई शक्ल में डेटा अपडेट होगा ना, तो वो जब रिफ्रेश करेंगे तो वो सारे उस स्टेप्स से जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया उससे गुजर के रिफाइंड डेटा ही आगे लेकर जाएगा, आपकी रिपोर्ट एज इट इज अपडेट हो जाएगी। ये पावर क्वेरी का सबसे बड़ा बेनिफिट है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो तो आप बैकएंड के ऊपर करेंगे ना, वो तो आपकी वैल्यू अपडेट हो गई, वो तो सिंपल है, आपने रिफ्रेश किया वो नई वैल्यू आ जाएगी वहाँ पे, वो कोई मसला नहीं। एक दफा कनेक्ट हो गया सोर्स के साथ, अब सोर्स अपडेट करेंगे वहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगा, वो कोई इशू नहीं। तो अगर मैं स्विच करता हूं तो दूसरी डोमेन से दोबारा परचेज करना पड़ेगा या उसी को? नहीं, देखिए अगर आप कंपनी वाइड प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं तो जाहिर है उस कंपनी का अलग लाइसेंस होगा, ये वाला लाइसेंस आप उधर तो नहीं चला सकते। यही समझ रहा हूँ मैं कि आप एक जगह काम कर रहे थे, वहाँ पे एक लाइसेंस आपको अवेलेबल था ना, अब आप जब वहाँ जाएंगे तो वो वैसे ही आपका खत्म कर देंगे, वो एक्सेस आपको देंगे कि वो उससे आप वही वाला एक्सेस करेंगे। पर्सनलाइज नहीं है ये, डोमेन से ही होगा। पर्सनलाइज नहीं, पर्सनलाइज वो अलग चीज है, दो अलग बातें हैं। पर्सनलाइज का मतलब ये है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप एक वन मैन आपका काम है, आप अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। ये जो आप सवाल कर रहे हैं ना कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, ए ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, आपको एक आईडी मिली हुई थी, अब आप छोड़ के बी को ज्वाइन कर लिया आपने, तो अब वो आईडी तो वो आपका एडमिनिस्ट्रेटर ब्लॉक कर देगा, क्योंकि आप उससे तो आप पुराना वाला डेटा एक्सेस करेंगे, ये वाला यहाँ नहीं कर सकते आप उसको। हाँ, क्योंकि वो वेरिफिकेशन ईमेल आती है, वो सब आता है, तो वो ईमेल ही खत्म हो जाएगा आपके पास, तो नई आईडी बनानी पड़ेगी। और रहा सवाल इसका कि ये आता है सवाल कि अगर हमारे पास डोमेन नहीं है, लेट्स से वी डोंट हैव अ डोमेन एट तो फिर उसमें माइक्रोसॉफ्ट ने खुद ही उसकी सॉल्यूशन निकाली है, वो microsoft.com की आईडी दे देता है। हाँ, वो ऑफिस 365 साइन अप है, उस पे ये माइक्रोसॉफ्ट को कुछ डोमेन होना चाहिए। जीमेल जाओ नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो फिर कह देता है कि ठीक है मेरी डोमेन नहीं है, लेकिन वो रहते हैं। जी जी।
मैं ये पूछ रहा था कि ऐसी हमारी बहुत सारी चीजों से मैं फैमिलियर नहीं था। ठीक है, जैसे एसक्यूएल आपने बात की, पावर क्वेरी आपने बात की, तो अगर मैं कोर्स लेता हूँ तो ये नहीं सही है, तो मुझे इसीलिए तो आए हैं यहाँ पे, सीखने के लिए तो आए हैं। नहीं मतलब एक ऐसा भी नहीं है कि मेरे को बहुत ज्यादा मतलब इनिशियल लेवल पे एबीसीडी भी नहीं पता है, एग्जांपल दे, ठीक है, हम लोग काम करते तो वैक्सीन पे काम किया हुआ है, हमने कुछ सॉफ्टवेयर पे काम किया हुआ है, बट इस एसक्यूएल और ये सारी चीजें जो अभी बहुत सारी चीजें ऐसी डिस्कस इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। सही है। और धीरे धीरे कैसा है कि ये कि मेरे पास कुछ नॉलेज नहीं नहीं नहीं, हम तो ऐसा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक्सेल आनी चाहिए, बाकी सब हम यही सीखेंगे, एसक्यूएल भी हम यही सीखेंगे, पाइथन। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि ये जो चीजें हैं, हाँ नहीं मतलब मेरा कहने का जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की ना, ये सब हम यही सीखेंगे पहली बार। आप ये ऐसे सोचें, ऐसे प्रायर नॉलेज जरूरी नहीं है इसके लिए। सबसे आपकी क्या लेवल, क्या लेवल आप बताएं, क्या नहीं है और आपको पता है, इसमें थोड़ा सा आपको पता है। अच्छा, सब ऐसे ही है, हमारी टाइम ऑडियंस है ना, this is the insecurity that you have to be able to cope up or not, right? You have that insecurity कि यार मैं पावर भी कर पाऊंगा या नहीं, या मैं वो सीख पाऊंगा क्योंकि पता नहीं मुझे शायद ज्यादा टाइम लगे। हमारी तो ऑडियंस ही वो है जिनको ये स्ट्रगल होता है। You online तो we have expertise in that on how to make that journey very smooth. और दूसरा ये कि अगर हमने टेक्नोलॉजीज पहले सीखी भी है ना, तो ऐसा होता है कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कहते हैं एज एन एनालिस्ट, आपको जब ये नॉलेज अप्लाई करनी होती है ना, तो हमें यूजुअली हमारा यहाँ का सेटबैक है कि हमें आइसोलेशन में ये चीज़ें पढ़ी हुई होती है। अगर एसक्यूएल पढ़ी है तो एसक्यूएल पढ़ी है खाली ना, तो अगर हमें इस सिनेरियो में बिठा दिया जाए कि भाई आपने पावर बीआई का डैशबोर्ड बनाना है यूजिंग एसक्यूएल, तो ऑल्दो कि आपको एसक्यूएल आती होगी लेकिन यहाँ फंस जाएंगे आप। तो हमारा जो मेन फोकस है ना यहाँ पर वो ये है कि हम जो यानी आप पावर बीआई डेवलप हो रहे हैं यहाँ पे इस कोर्स के अंदर में, तो आपको ये सारी टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट कैसे करनी है ताकि आप फाइनल आउटपुट बना सकें उसके अंदर, ये हमारा मेन फोकस होता है। ये एसक्यूएल भी है तो पावर बीआई में कैसे इस्तेमाल करनी है, पाइथन है तो वो भी कैसे इस्तेमाल करनी है, ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो है वो हम इंशाल्लाह इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है जी, ऑनलाइन तो कोई क्वेश्चन है नहीं। ये कर लेते हैं। ठीक है ठीक है जी, दैट्स इट फ्रॉम मी। अब फरहान साहब इंशाल्लाह। All right, huge round of applause for Tahir Ali for कोई दम नहीं है मतलब बस जोरदार। Great, excellent, that's great. Thank you so much for your encouragement, and obviously our purpose here is to provide you a complete orientation on how Power BI can help your life, how can Power BI help your life becoming easier in terms of, और इस चीज की तो आप टेंशन रखे ही नहीं कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज एक चीज की हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आपका पैशन और आपका पर्पस और आपका स्कोप क्लियर होना चाहिए कि मुझे पावर बीआई सीखना है। अगर आप उसके ऊपर डिटरमिन्ड हैं तो लेट्स वॉक थ्रू टुगेदर, वी आर हियर टू टेक योर हैंड एंड वॉक यू थ्रू, दिस इज आवर जॉब, दिस इज व्हाट यू आर पेइंग फॉर, दिस इज व्हाट वी आर हियर टू सर्व, राइट? सो एनी क्वेश्चंस, वेदर चाहे बेसिक चाइल्ड लाइक क्वेश्चन, बच्चों वाले सवाल, बड़ों वाले सवाल, every just ask, we are here to serve you. Now let us discuss about the freelancing opportunities. Obviously freelancing एक buzzword बना हुआ है, hashtag freelancing, freelancing हर किसी को बहुत ज्यादा सीखनी है, right? But है क्या ये freelancing, और ये freelancing Power BI से लिंक कैसे हो जाती है? That question came into my mind as well. मेरे माइंड में भी ये सवाल आया कि यार ये freelancing है क्या, और ये मतलब क्या, मतलब एक्चुअल मुझे बताओ, रिजल्ट बताओ, रियल चीज बताओ, don't talk, tell me, show me. So I went to Upwork की वेबसाइट पे गया जो कि पॉपुलर प्लेटफॉर्म है फॉर पावर बीआई, और वहां पे मैंने ये सवाल किया कि how much does it cost to hire, so you are becoming a Power BI developer, right? So ultimately you will be hired for it. So how much does it cost to hire a Microsoft Power BI specialist?
ये मैं गया अपवर्क की वेबसाइट पे, मैंने उसकी रिसर्च की, ये वेबसाइट का लिंक है, और मैंने ये रिसर्च की, मैं आपको डेट बता देता हूं, जनवरी 2024, तो ये 4-5 क्या कहते हैं 8 महीने पुरानी है रिसर्च। वहां पे मैं जब अपवर्क पे गया तो एट अ बिगिनर लेवल, ये अपवर्क बोलती है कि जो बिगिनर लेवल का भी जो पावर बीआई डेवलपर है वो भी $30 पर आवर चार्ज करता है। इंशाल्लाह ताला थ्रू योर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम you will be able to go up to the intermediate level and advanced level as well, inshallah taala. But every journey starts with from one small step. Take it as a beginning. मैं ये नहीं कह रहा कि अगेन आप क्या ट्रेनिंग के बाद सर 4 महीने के बाद मैं $30 कमाना शुरू कर दूंगा। वेबसाइट बोल रही है मे बी $30 के बजाय $25 हो जाए, मे बी $20 हो जाए, who knows, but there is real money there, डॉलर्स हैं वहां पे, और वो रिसर्च बोल रही है कि डॉलर्स हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि आप कैसे उसका पोटेंशियल लेते हैं। हम अवेलेबल है पावर बीआई की ट्रेनिंग देने के लिए, लेकिन क्या ये यहाँ पे करोड़ लोगों का आवाम भरी हुई है? यहाँ पे करोड़ लोग तो नहीं आए हुए, यहाँ पे 40-50 चलो 100 लोग आए हुए। उन करोड़ लोगों को नहीं पता कि यार पावर बीआई ट्रेनिंग हो गई, हम सीख रहे हैं। अपॉर्चुनिटी तो है ना, इसी तरीके से काम देने वाले बैठे हुए, क्या आप उन तक पहुंचे हुए या नहीं, ये सवाल पूछे। आप नहीं पहुंचे हुए तो वो तो पैसे देने के लिए तैयार हैं। मेहनत लगेगी, हार्डवर्क होगा, शायद पहले आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़े, शायद फ्री में करना पड़े काम, या थोड़ा सा कम रेट पे काम करना पड़े, लेकिन आप पहुंच जाएंगे वहां पे। ये इंशाल्लाह ताला मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं कि पहुंच जाएंगे आप। और मैंने आपसे बातें नहीं की, मैंने आपको शो किया है। आप जाएं अपवर्क की वेबसाइट पे जाके रिसर्च करें कि अपवर्क की वेबसाइट पे कोई अगर हायर होता है पावर बीआई कंसल्टेंट, उसको क्या मिलता है। दैट्स इट। और क्या कर सकता हूं, यही कर सकता हूं, आई कैन शो यू। सो यस यू कैन अर्न। और हम इसमें जो है वो आपको जो है ना एक चीज करते हैं इंट्रोड्यूस यहाँ पे, जो हम के पावर बीआई का पोर्टफोलियो कैसे बनता है। सो इमेजिन योरसेल्फ मेकिंग अ सीवी फॉर इंटर्नशिप। हाउ स्केयर्ड आर यू कि यार पहली जॉब, पहली सीवी, पहली इंटर्नशिप, यू डोंट नो कि कैसी सीवी बनती है। हम आपको हेल्प करेंगे। पावर बीआई की लैंग्वेज में इसको बोलता है पावर बीआई पोर्टफोलियो। तो हम आपको पोर्टफोलियो बनाना सिखाएंगे कि अगर आप किसी क्लाइंट को आगे जाके काम ले रहे हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे पावर बीआई का, उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। फिर आगे नसीब के जैसे मिलता है, बट वील बी देयर फॉर यू इंशाल्लाह। ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। ये कुछ अमेजिंग डैशबोर्ड्स हैं। आई एम प्रीटी श्योर स्क्रीन थोड़ी एजी हुई है, आई थिंक प्रोजेक्टर को थोड़ा देखना होगा, बट यहाँ पे कुछ और अच्छे डैशबोर्ड्स हैं। ये बड़ा अच्छा डैशबोर्ड है। अब दिस इज सो नाइस, this is like next level. Why? You have your data there. Power BI is saying ask the question. Which tool says that? Excel बोलती है ऐसे कि क्वेश्चन पूछो डेटा से। नहीं, एक्सेल नहीं करती। एक्सेल में बटन दबाने पड़ते हैं। ये कहता है कि भाई सवाल पूछो मुझसे, which one is the most sick leave employee? sick leave employees का डेटा आ जाएगा, सबसे ज्यादा जो sick leave ले रहे हैं। So these are the things that you start exploring, and obviously जब हमारे पास लोग आते हैं तो ये एक कॉमन कमेंट आता है, और इंशाल्लाह ताला मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपकी तरफ से भी आ ही जाएगा कि सर अब एक्सेल में काम करने का दिल नहीं चाहता। We want to work in Power BI only. We don't like Excel. Because when you start transitioning to this part, it's so beautiful that you just don't want to work in Excel. It's so, life is so stuck while you're working in Excel. All those things that you're doing in Excel, here you can amplify on what you were doing. और वो अगेन बातें नहीं है, हमने आपको सारे चैप्टर प्रीव्यूज दिखाए हैं, हमने आपको सारी विजुअली सारा चीज दिखाया है। इंशाल्लाह ताला we'll work together. हम भी आपको नॉलेज देंगे, लेकिन 2 कदम आपको भी लेने पड़ेंगे। तो we'll work together and it will be a learning partnership that we'll develop. Now let us go through the UXL training platform. उसके बारे में जानेंगे। Fintech training firm consultancy, and our vision is to bridge the gap between industry and academia through need-based trainings.
We also are the only training providers in Pakistan who provide you IFA UK certification, international certification. गला बैठ के पता नहीं क्यों ज्यादा जज्बाती हो गया लगता है। अच्छा, IFA UK का सर्टिफिकेट ये है कि आप में से कितने जो फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं? आप भी थे मेरे ख्याल से। हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, IFAC बॉडी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, IFAC की ट्रेनिंग आम में आती है IFA UK, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स। तो आप जो है वो पावर BI के सर्टिफाइड एनालिस्ट बन जाते हैं थ्रू IFA UK, और आपको UK की सर्टिफिकेशन मिलती है, विच मींस यू कैन गेट इंटरनेशनली सर्टिफाइड रेटर। इसकी अलग से फीस है, लेकिन वो फीस आप पे करके इंटरनेशनल सर्टिफाइड। तो कल को आप मिडिल ईस्ट में अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, या कनाडा में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, या UK में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपका पावर BI का स्किल रिकॉग्नाइज्ड होगा इंटरनेशनली। जैसे आपको पता है सर, ये जो है ये सर्टिफिकेशन पे करके, हाँ, इसके लिए कोई फर्दर कोई एग्जाम लेना हो? वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। जैसे हमारी PT है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, पैमरा है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटिंग अथॉरिटी, डिफरेंट अथॉरिटी। इसी तरीके से ट्रेनिंग्स की अथॉरिटी है स्टैफटा, टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, ट्रेनिंग अथॉरिटी। तो जो भी इदारे जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका स्टैफटा से रजिस्टर होना मस्ट है। अगर वो स्टैफटा से रजिस्टर्ड नहीं है तो वो इलीगल है एक्चुअली। दिस इज लाइक गुड टू नो फॉर यू, फन फैक्ट। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह स्टैफटा से रजिस्टर्ड हैं, और आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से इंडोर्स होके आते हैं। ये जो सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट का, ये इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंक्लूडेड है, ये आपको मिलता है बाय डिफॉल्ट। IFA UK का एडिशनल फी है। दोनों के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सेम है, एग्जाम दोनों का सेम है, क्योंकि ट्रेनिंग कंप्लीट होगी आपको एग्जाम दिया जाएगा, वो एग्जाम दे देंगे आप, ऑटोमेटिकली आप क्वालिफाई हो जाएंगे। इसके लिए अलग से फीस देनी होगी। इसके साथ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के भी मेंबर्स हैं। जी क्वेश्चन था, अभी थोड़ा सा बस वेट कर ले, मैं स्लाइड से गो थ्रू कर लूं, और उसके बाद हम जो है वो Q&A ले लेंगे। इट्स जस्ट ऑब्वियसली आई वांट टू गो थ्रू द होल स्लाइड्स, ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी आ जाए। This is my brief profile. I am an ACCA member, and I hold BSc Applied Accounting degree from Oxford Brookes UK, and along with that I've got a 10-year plus experience of working in London and Dubai, and also I have completed my trainer certification from ATD USA, Association of Talent Development USA, or I am the founder and chief visionary officer at UXL. So this whole UXL platform jahan pe सारे ट्रेनर्स हैं, सारे ऑब्वियसली दिस इज ऑल द थिंग दैट आई हैव बीन रनिंग थ्रू सिंस 5 years now. This is the 5th year that is in running. Now we have the profile of lead effective skill development trainer Tahir Ali, who is possessing the experience of 16 years, and he is Microsoft certified trainer most importantly, and most important thing ये भी है कि इन्होंने इंडस्ट्री में भी काम किया और इन्होंने ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की है, तो इनके पास काफी इंडस्ट्री की नॉलेज है। तो विच मींस कि जब आप सवाल पूछ रहे होंगे तो आप तो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आपकी जो इश्यूज है वो वही उनके जवाब दे सकता है जो खुद इंडस्ट्री में काम कर रहा हो। खुद बंदा थ्योरी में बैठा हुआ है यूनिवर्सिटी में, या कोई ऐसी मतलब लेक्चरर ऐसी पोजीशन में है और उसने कभी काम नहीं किया, तो कभी इस वाली साइड को समझ ही नहीं पाएगा, मसला आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रेनर्स आते हैं जो कि खुद काम कर रहे होते हैं, ताकि आपके मसले का हल बताएं, आपका टाइम सेव करें और आप एफिशिएंट टेक्निक्स को अप्लाई करें। ये हमारे MOUs हैं जो डिफरेंट गवर्नमेंट के साथ हो रहे होते हैं। ये हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ऑब्वियसली फिजिकल ऑडियंस में तो बहुत सारे आए हुए हैं यहाँ पे, और ऑनलाइन ऑडियंस हमारे पास ऑब्वियसली मिडिल ईस्ट से काफी ज्यादा आ रही होती है, आउटसाइड कराची भी आ रही होती है, मतलब लाहौर से या इस्लामाबाद से, डिफरेंट जगहों से। तो वो हमें वर्चुअली ज्वाइन कर सकते हैं, और जो फिजिकल यहाँ पे कराची में रहते हैं वो तो यहाँ पे ऑन कैंपस आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। गुलशन इकबाल में हमारा इंस्टीट्यूट है। ये हमारे डिफरेंट गवर्नमेंट के साथ और प्राइवेट सेक्टर के साथ ट्रेनिंग हो रही होती है। ये हमारी रिसेंटली ट्रेनिंग हुई थी निबाफ में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस निबाफ, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ट्रेनिंग की आर्म विंग है। और इसके साथ साथ जो है वो ये हमारी ट्रेनिंग हुई थी KPMG में,
where we provided training of Power BI, कस्टमाइज ट्रेनिंग कराई थी हमने जाके कंपनी में ही। और इसके साथ साथ जो है वो ये हमारी ट्रेनिंग हुई थी एंग्रो कॉर्पोरेशन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट जगहों पे हमने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किए, और रेगुलर जैसे आपका ये है रेगुलर 4 मंथ्स का, तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, और कस्टमाइज कंपनीज में जाके 2 डे 3 डे वर्कशॉप भी कराते हैं। तो आप में से वो पार्टिसिपेंट्स जो कि अपनी कंपनी में ट्रेनिंग करवाना चाह रहे हैं एज अ कस्टमाइज, तो हम वो भी वी कैन प्रोवाइड द सर्विसेज फॉर दैट। ये जैसे हमारी कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग्स हैं जो कि वो चल रही हैं। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो हमने अब तकरीबन हमें 3 साल हो गए हैं, बल्कि अब मेरे ख्याल से 4 साल हो गए होंगे कि हमने ये ऐड किया, विच इज LMS, कि जो भी सेशंस हैं वो रिकॉर्ड होते हैं, और रिकॉर्डिंग के बाद उनकी LMS की रिकॉर्डिंग का आपको यूजर ID पासवर्ड दे दिया जाता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि उन 3 घंटों में कवर होने में शायद आप कवर कर पाए, शायद आपसे मिस हो जाए, शायद अम्मी की कॉल आ जाए, शायद वाइफ की कॉल आ जाए, व्हाटएवर। तो एटलीस्ट जो भी डिस्ट्रैक्शंस हो रही होंगी, एटलीस्ट आपको पता है कि पीछे रिकॉर्डिंग है जिसको मैं देख के कवर कर सकता हूं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको कभी भी रिकॉर्डिंग पे रिलाय नहीं करना, आपको लाइव सेशंस लेने हैं। रिकॉर्डिंग इज ओनली अ एड फॉर यू। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि ओके फाइन सेशन मिस हो गया, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में से देख लूंगी या देख लूंगा, तो नो, आप यहां से आपका फेलियर स्टार्ट है, यू स्टार्टेड फेलिंग। सो डोंट रिलाई ऑन द रिकॉर्डिंग्स, जस्ट टेक इट एज अ रेफरेंस नोट्स। ये रिकॉर्डिंग्स आप जो है वो मोबाइल ऐप पे भी देख सकते हैं और लैपटॉप पे भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप डाउनलोड होती है, उसमें रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, वो मैं जब आप रजिस्टर करेंगे तो फिर वील शेयर विद यू द डिटेल्स। ये रिकॉर्डिंग्स 12 मंथ्स तक एक्सेस इनका प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, ये हमारे जो है वो क्लाइंट्स है, जैसे कि मैंने पहले आपको शेयर किया कि हमारे कंपनीज में भी ट्रेनिंग हो रही होती है, तो ये हमारे सारे पब्लिक सेक्टर के क्लाइंट्स हैं, और ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट सेक्टर के क्लाइंट्स हैं, जो कि पिछले 5 सालों में हमने डिफरेंट कंपनीज में ट्रेनिंग की, और अल्हम्दुलिल्लाह सम ऑफ द टॉप ब्रांड्स, टॉप कंपनीज, इनके पास जाना, इनको प्रेजेंट करना, फिर इनसे रिपीट क्लाइंट ही है, मतलब आर्टिस्टिक इज वन ऑफ आवर रिपीट क्लाइंट्स, ये बार-बार ट्रेनिंग करा रहा होता है। एंग्रो इज अ रिपीट क्लाइंट, यूपीएस से भी आ रहा होता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हमारे पास रिपीट क्लाइंट, IMCPRS अभी है, मीज़ान बैंक है, दैट्स अ रिपीट क्लाइंट। ये बार-बार हमारे पास ट्रेनिंग्स आ रही होती है। अभी भी मीज़ान बैंक के अभी इस बैच में पार्टिसिपेंट नॉमिनेट हुए हैं। रिकॉग्नाइज्ड बाय, ऑब्वियसली ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से हम रिकॉग्नाइज्ड हैं ट्रेनिंग। अच्छा, ये वो सर्टिफिकेट है जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट इस ट्रेनिंग में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मिलेगा। ये सर्टिफिकेट वो है जिसपे गवर्नमेंट का स्टैम्प होगा, और ये QR कोड है। यस, सिंध गवर्नमेंट QR कोड पर आ चुकी है, वेरी यूजफुल फॉर मी टू नो। बट एनीवेज, तो आप QR कोड को स्कैन करेंगे, सिंध गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आपका नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर एंड कौन सा कोर्स आपने लिया। तो पहले ये होता था कि सर्टिफिकेट इशू हुआ, स्टैम्प हुए, सब चीजें साइन वाइन हुई, लेकिन आपका जो सर्टिफिकेट है अगर किसी को वेरीफाई करना है तो लेटर लिखना है, फिर लेटर का जवाब आएगा। तो अब ये QR कोड के थ्रू हो जाता है। दिस इज द सर्टिफिकेट प्रीव्यू फॉर IFA UK। तो ये IFA UK का है, जावेद एंड प्रोग्राम नेम फ्रॉम USL, और ये जॉन एडवर्ड्स हैं जो CEO है, वो IFA UK का सर्टिफिकेट जारी होता है। इसकी अलग से फीस है 65 पाउंड्स। So now comes the special offer। हो जाए, अच्छा, यहाँ पे मैं अभी एक और भी सेशन चल रहा था, पहले ऑनलाइन से पूछ लेते जी। ऑनलाइन ऑडियंस, स्पेशल ऑफर हो जाए या रहने दें? कोई जवाब नहीं है तो बस ठीक है। अच्छा अच्छा, मेरे पास एक बड़ा अच्छा एक आइडिया है, मुझे एक पार्टिसिपेंट ने दिया है। आइडिया ये था कि जो ये कह रहा है कि स्पेशल ऑफर हो जाए दे दें, उनको दें, जो नहीं दे रहे जवाब दे रहे उनको नहीं दें। अब सबको बोलना पड़ेगा तो फिर मिलेगी, वरना तो अच्छा, ऑल राइट। अच्छा जी, अब जो है वो क्विकली जवाब आना शुरू हो गए हैं। यस 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 यस, देखिए अब बस ठीक है, बीनेश को देने वाला हूं मैं, और मोहम्मद अहमद को देने वाला हूं, मोहम्मद दानिश को, बाकी सबको स्पेशल ऑफर नहीं मिलने वाली। सबका जवाब आएगा तो फिर मिलेगी स्पेशल ऑफर। आपने दे दिया
All right, so for you all, we will be sharing a special offer for Power BI training program, which is obviously a very powerful special offer as well. So let's get to know what you're actually getting. सर हमें मिल रहा क्या है इस ट्रेनिंग से? सबसे पहले तो आपको 48 आवर्स ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग है, जिसमें हम ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। हम आपको इसमें मशीन लर्निंग, एसक्यूएल, पाइथन, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, पावर बीआई को कैसे ओवरऑल टूल करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेसिक से लेकर चलना है। वी विल बी एक्सपेक्टिंग कि आपका पावर बीआई में कोई बैकग्राउंड नहीं है, और फिर हम चेक कर चलेंगे, विच मींस कि जिनको पावर बीआई आता है वो भी इस ट्रेनिंग में आ सकते हैं, क्योंकि हम बेसिक से लेकर एडवांस तक जा रहे हैं। जिनको बेसिक है तो उनके लिए इंटरमीडिएट का पार्ट नया होगा, शायद बेसिक वाले पार्ट में उनको बहुत सारी चीजें आती हो, लेकिन इंटरमीडिएट एडवांस उनके लिए नया होगा। तो ये फिर एक दूसरी चीज ये है कि हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री सर्टिफिकेट दे रहे हैं गवर्नमेंट से, जो कि क्यूआर कोड से वो इसमें इंक्लूडेड है ऑलरेडी। फिर हम आपको एलएमएस की रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, और वो आपको 12 मंथ्स का एक्सेस। फिर हम आपको जो चीज मैंने मिस की जब मैं पहले जॉब करता था, मेरे पास कोई व्हाट्सएप कम्युनिटी नहीं थी। अगर मैं कहीं स्टक हूं तो मैं किससे सवाल पूछूं? मेरा कॉलीग है, उससे मैं सवाल पूछता हूँ, वो मुझे जज करता है यार इसको ये भी नहीं आता, तो मैं क्यों किसी कॉलीग से सवाल पूछूं जो कि मुझे जज कर रहा है? I want to ask a question where I'm like a free bird. I can ask any question, whether it is dumb or smart question. We will at this community not judge you. We will be able to serve you. हमारा काम सर्व करना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ हमारा काम नहीं है सर्व करना, क्योंकि कम्युनिटी है तो एक दूसरे को सर्व करें। So this is what really we'll be offering you all in this training program. Obviously फिर इसमें पावर बीआई का पोर्टफोलियो है, वो कैसे बनता है फ्रीलांसिंग के लिए, उसको डिस्कस कर रहे होंगे हम, और प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और इसको हम प्रैक्टिकल रखेंगे ताकि आप जब सेशंस कर रहे हो तो आप पावर बीआई का डैशबोर्ड बनाएं और ताहिर आपको मॉनिटर कर रहे होंगे, ताकि अगर कोई गलती हो रही हो तो आप उसको उसी वक्त ही सही हो जाए। This whole training program, after telling you all the different opportunities that we bring in here for you, just 11,800 per month and 44,600। अगर आप ये ट्रेनिंग कहीं बाहर जाते हैं तो ये सिर्फ अपने आप में 2 डे 3 डे वर्कशॉप होते हैं, 1 डे 2 डे, और वो 50,000 तक चले जाते हैं। प्रॉपरली की बात कर रहा हूं, अगर प्रॉपर नहीं है तो वो तो फिर पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन प्रॉपर यहाँ पे हमने इसको अप्रोच को रखा कि यार 4 मंथ्स पे ले जाते हैं, बाइट साइज लर्निंग, ताकि 3-3 घंटों के लेक्चर्स हों और आप उस पर प्रैक्टिस भी करें, और हम आपको असाइनमेंट देंगे तो आप असाइनमेंट सबमिट भी करें। और हाँ, एक और चीज भी हम करते हैं यहाँ पे, जो कि मुझे अभी अचानक याद है आपको बताते हुए, वी कीप इन डैशबोर्ड कॉम्पिटिशंस। तो 2 महीने के बाद एक कॉम्पिटिशन होगा, एंड द कॉम्पिटेड whoever wins will get a gift from us as well. So we put a lot of interaction and activities as well, ताकि वो एक engagement रहे constantly. So this training obviously is 11,800 per month and 44,600 lump sum पे है, but today you will be getting a special 10% discount offer, which means it's just 10,620 per month and 40,140 lump sum fee, which includes obviously all these different value-added services that we provide. And obviously the offer ends on 17th September at 3 p.m. So make sure you take this opportunity to enroll yourself as soon as possible, ताकि आप जल्द से जल्द ट्रेनिंग में enroll करें और इस ट्रेनिंग से क्विकली फायदा उठाएं और अपनी कंपनी को भी फायदा दें और अपनी भी सेल्फ डेवलपमेंट आगे बढ़ाएं। इंशाल्लाह। So with that, I would really like to thank you all for attending this orientation. यहाँ पे मैं आपको ये भी शेयर करता चलूं कि इसकी ड्यूरेशन इन टर्म्स ऑफ शेड्यूलिंग क्या है। तो ये ट्रेनिंग एवरी सैटरडे हो रही होगी between 6 p.m. to 9 p.m. और ये स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट वीक 21 सितंबर से। So every Saturday classes हो रही होंगी 6 p.m. to 9 p.m. Obviously बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक होगा, क्योंकि we to understand कि ये बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक जरूर चाहिए होता है। बट yes, ये 3 hours की ट्रेनिंग रहेगी और इससे 4 months चलेगी। So with that, we would really like to once again thank you all for choosing UXL as your learning partner, and we really look forward to having your success stories. और आप अपनी achievements share करें, आप Google पे चेक करेंगे, आप अगर LinkedIn पे, Facebook पे, YouTube पे, you will see a lot of people who have really got value from this training program. उनको बहुत benefit हुआ है। हम चाहते हैं कि आप भी success story बने। मेरे पास एक पार्टिसिपेंट आया, मैं हमेशा ये बताता हूँ, और वो मैं क्योंकि इंस्पायर्ड हुआ बहुत ज्यादा, तो कह रहे हैं सर हम काम तो कर रहे थे, ऐसे नहीं कि हमारा काम स्टॉप हुआ था,
लेकिन मैंने सिर्फ 2 सेशंस आपके लिए, उसमें जो 2 सेशंस में मैं जो सीखी वो फीमेल थी, पार्टिसिपेंट रिसर्च एसोसिएट, मुझे एहसास हुआ कि मैं कितने लंबे स्टेप्स कर रही थी उसी काम को, मतलब मैं 10 स्टेप्स कर रही थी, मुझे पहले 2 सेशंस में मेरा काम वो 2 स्टेप्स में हो जाता है। अगेन दिस कम्स थ्रू द लर्निंग ट्रेनिंग। आप जब टाइम देते हैं किसी चीज को, अब आप सोचें 8 स्टेप्स अगर किसी बंदे के कम हो गए तो वो कितना प्रोडक्टिव हो गया और कितने अच्छे काम कर पाता होगा। अच्छा, अब अगर उसको पता नहीं है तो क्योंकि उसकी दुनिया तो वो 10 स्टेप में है, तो वो अपने उस कुएं से निकला ही नहीं, तो वो कह रहा है कि मैं तो परफेक्ट हूं, उसमें उसकी गलती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो निकले ही नहीं बाहर। ये तो आपको उस कुएं से निकलना पड़ेगा, तब पता चलेगा आपको कि यार 10 से 2 पे कैसे आना है, वरना तो आप तो एक्सपर्ट हैं दुनिया में, आपसे ज्यादा कोई अच्छा है ही नहीं, क्योंकि आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया। आपने अपनी जो और ये बेस्ट है, इतना मजे से हमें डैशबोर्ड दिखाते हैं लोग, कहते सर ये हमने काम किया, ये किया, ये देखें, इसको क्लिक कर रहा हूं। जब हम उससे 3 सवाल पूछते तो वो कहते ओ सर ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। So they feel very inspired and we like it, you know, we like it. They're very involved in whatever you do, but they don't have the other hidden part, they don't know that part. तो हमें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमने मेहनत की और हमारा काम ही है कि हम आपको सिखाएं, तो हमें पता होता है कि कौन से हिडन एरियाज है जहां पे आप अपना उन काम को ऑप्टिमाइज करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। So, and that is what really the objective is of this whole training program. So do follow us on these social media channels, Facebook, LinkedIn and Instagram and YouTube, जहाँ पे हमारी बहुत सारी different videos available हैं, आपके लिए learning materials भी available हैं, और इंशाल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला बहुत सारी कामयाबी दे। We really will feel blessed कि आप जब कामयाब हुए तो उसमें छोटा सा contribution हमारा भी था। So that would be a very you know, you will sleep with peace. You know, we've contributed into your success. That would be an honor for us. So with that, we would really like to thank you all with deepest gratitude for choosing UXL as your learning partner, and really look forward to welcome you next week 6 p.m. to 9 p.m. Any questions? The floor is open now. जी chat पे है. Okay. Oh wow. Sharjeel has got a lot of questions here. So we mostly have data of sales and market in the Excel form. Is it convertible to Power BI? Yes, it is convertible to Power BI. अच्छा, एक और चीज बड़ी देखें, सवालों से फिर मतलब माइंड भी खुलता है ना। पहले क्या होता था कि हम जो है वो सेल्स का डेटा यूज करते थे फॉर पावर बीआई डैशबोर्ड। अब हम सेल्स का, एचआर का और फाइनेंस का, 3 डिपार्टमेंट्स का डेटा यूज करते हैं। शायद आपने बताया था, ये नहीं बताया हाँ। उससे ये होता है कि आपको एक मिक्स वैरायटी ऑफ फ्लेवर मिलता है, यू नो, यू स्टार्ट गेटिंग द फ्लेवर ऑफ डिफरेंट डेटा। तो पहला तो आपका हो गया। उसके बाद डू वी यूज दिस डेटा डिस्प्ले only on Power BI or can copy to PowerPoint? Yes, you can. In fact, you can link your Power BI dashboard with PowerPoint as well. That you can. लाइसेंस फीचर ऑब्वियसली $100 तो लगते हैं, लेकिन ये कि बहरहाल फायदा है। अच्छा, डू वी नीड टू डाउनलोड पावर बीआई? इज इट फ्री टू डाउनलोड? यस, इट इज फ्री टू डाउनलोड। यू विल गेट 60 days of license free trial, and then obviously then you'll have to use this without license. फिर भी आप विदाउट मतलब 60 day ट्रायल के बाद भी आप यूज कर सकते हैं, बस आप शेयर नहीं कर सकते, और कुछ उसके जो पेड वाली वर्जन के जो फीचर्स हैं वो थोड़े डाउनग्रेड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप यूज कर सकते हैं पावर बीआई को। जी हाँ, एक और आईडी बना के कर लें, और क्या यही हो सकता है, और क्या हो सकता है। अच्छा जी, पाकिस्तानी सोल्यूशन है। ओके अच्छा, उसके बाद ये सवाल एक आया हुआ है, do we need to download Power BI? Is it free to download? Do we need to, okay, do we need Power BI Pro facility to do freelancing? Or it really depends. You can do Power BI projects without paying, but the problem जो आएगा ना, जहां पे Power BI स्टक कर देती है आपको, आप शेयर नहीं कर सकते डैशबोर्ड, यहां पे आप स्टक। आखिर उनको भी तो ऐसे तो नहीं करें, ये तो जुल्म हो गया, मतलब ऐसा ना करें, उनको भी थोड़े पैसे दे दें, खुद कमा रहे हैं डॉलर में, और उनको एक $10 भी नहीं दे दें, तो उनको भी थोड़े से पैसे दें, तो वो भी कमाए, तो अच्छे अच्छे फीचर दें आपको, ठीक है ना। तो लेकिन ये कि बहरहाल काम चल सकता है, ऐसे नहीं कि काम रुक जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो पावर भी आ जाएगा उसका एक, कि भाई अब पैसे आ जाएं। ओके, कैन आई यूज सम परमानेंट आईडी टू एक्सेस माय सेम बीआई अकाउंट रिगार्डलेस ऑफ जॉब चेंज?
Yes, you can, because आप माइक्रोसॉफ्ट की जो आईडी बनती है पावर बीआई की, वो आप अपनी पर्सनल आईडी माइक्रोसॉफ्ट वाली बना लें और उसको आप पेड वर्जन पे चलें, बस वही आईडी जहां पे भी क्लाइंट पे जाएंगे कोई इस आईडी पे मुझे एक्सेस दे दें. So then that ID you can use it as a permanent ID for any project that you're getting. These 13 modules are 13 classes of this course. Means we will do all 3 levels in this course. Yes, we will do all these 3 levels in this course, inshallah taala. Obviously, we cannot promise with you के 13 classes मतलब पहली class में पहला module, दूसरी module class में दूसरा module. They may interchange depending on how the audience reacts. Whether you know what's your requirement, so we'll be customizing it throughout whatever your level of interest is. But yes, ultimately it will be covered. 16 classes है वैसे भी. हाँ. Do we get authenticated? सर मैंने आपको QR कोड दिखा दिया, और क्या दिखाऊं? Do we get authenticated certificate from this course? Yes, you will. इंशाल्लाह ताला आपको जो सर्टिफिकेट मिल रहा है वो QR कोड से गवर्नमेंट इनडोर्स सर्टिफिकेट मिलेगा, वो गवर्नमेंट का है. और जो IFE UK का वो तो ऑब्वियसली सेपरेट है, जिससे आप सर्टिफाई फॉर्म नहीं करेंगे. अच्छा, डू वी ज्वाइन सम क्लासेस? यस, आप दोनों क्लासेस आप कर सकते हैं, फिजिकल भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं. डू वी नीड टू ब्रिंग आवर लैपटॉप? यस, यू कैन ब्रिंग योर लैपटॉप, बट इफ यू डोंट वांट टू ब्रिंग योर लैपटॉप, देन UXL will provide you laptop because all these laptops are available for you. आप एक दफा हमारे पास आए, यहाँ पे फिजिकल ऑन कैंपस को जो है वो विजिट करें, तो आपको जो है वो यहाँ पे पता चलेगा कि हमारे पास ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं. आप अगर अपना लैपटॉप लेकर आना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, नहीं तो UXL लैपटॉप आपको प्रोवाइड करेगी. इसके अलावा एनी अदर क्वेश्चंस? एनी अदर क्वेश्चंस? ये देखें, यहाँ पे मैंने पिक्चर दिखा दी आपको, ये सारे लैपटॉप्स अवेलेबल हैं. एंड देयर यू गो, यू सी ताहिर अली हु इज ट्रेनिंग पीपल हैंड्स ऑन. ये पिक्चर्स की डाली, राइट? सो दीज आर ऑब्वियसली UXL के लैपटॉप्स जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं. एंड दे वेरी प्रोफेशनल. हमारे पास ये एक चीज होती है कि हमारे पास जो ऑडियंस आती है वो काफी प्रोफेशनल होती है, तो नॉन सीरियस एटीट्यूड इतना ज्यादा चलता नहीं है, बिकॉज वो फिल्टर आउट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली. ओनली सीरियस फोकस्ड पीपल कम इन एंड दे जॉइन. इट्स अ वेरी सीरियस प्रोग्राम. There is no like फिजूल की चीजें. You just come and you just do focus on the power. That's it. If I want to apply for UK certificate, so what's the procedure? Obviously, आपका जो एक प्रोजेक्ट है जो आपको आखिर में दिया जाएगा, वो प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करेंगे तो फिर आप IFE UK के लिए पे करेंगे और हम आपको IFE UK का सर्टिफिकेट दिलवा देंगे फ्रॉम UK. ऑफिस टाइमिंग्स 9 AM to 5 PM, Monday to Sunday. Okay, any other questions? By the way, it's very good to know that there are so many questions coming up, because that means कि you're fully involved and you want to really learn. And आपके question आते हैं तो हम भी motivate हो जाते हैं, because we are really passionate to share our knowledge as well. So thank you so much once again to all the participants. Obviously हमारी contact details अभी share कर रहे हैं हम आपसे थोड़ी देर में. आप ये नोट कर लें और आप हमसे सवाल ऑफ द लाइन पूछ सकते हैं, क्योंकि अब देर होती जा रही है, 9 भी हो गए हैं. पीपल हैव टू गो देयर होम्स एज वेल. बट यस, ये हमारी कांटेक्ट डिटेल्स. मैं एंड स्लाइड पे आ रहा हूं. ये आ गई हमारी एंड स्लाइड, और आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमें. एंड जो है वो उसमें हम आपको कोई भी सवाल आपका उसमें जवाब दे देंगे. ये हमारा डायरेक्ट नंबर है, नहीं तो लैंडलाइन पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं. और आप अगर विजिट करना चाहते हो तो विजिट कर लें. आवर टीम इज हियर टू सपोर्ट यू एंड गाइड यू. वंस अगेन, deepest gratitude to all of you for joining here into this orientation. बस एक फाइनल चीज बस आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या आपका टाइम यूटिलाइज हुआ या नहीं हुआ? राइट? जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, टाइम यूटिलाइज हुआ या नहीं हुआ? दैट इज that is something very important for us, because आपका जो टाइम है वो हमारे लिए अमानत है. आप अपना कीमती, वी नो कि कितना मुश्किल होता है टाइम निकालना इन चीजों के लिए, और अगर टाइम यूटिलाइज हो जाए तो ये हमारा फर्ज है कि हम उसको यूटिलाइज करें और उसको जो है वो मैक्सिमाइज करके आपको मैक्सिमम पोटेंशियल करते रहें. So with that, thank you so much once again, and really looking forward to welcome.